जैन साहब आप जब हाँ चाहो जी। स्टार्ट कर देना, जब आपकी इच्छा हो सर। नहीं सर, आप अगर आपका आदेश हो तभी करेंगे ना। नहीं आप नहीं, पहले प्लीज प्लीज सर शुरू मॉनिटर कर कर दो रहे सर, हो, आप शुरू सब कर दो। चीजों को देखो। कर दो सर, शुरू कर दो आप। शुरू कर दे रही सर। जी। First of all, I welcome all the participants for today's webinar, which is on annual return GSTR 9 and the audit GSTR 9C under the GST Acts. We have the learned speaker, our CA Manmohan Khemka, with me, and with me as well as on the panel is our dear brother Anand Dua. So I welcome the guest speaker today, the other panelist, Rajesh Agarwal ji, and all other participants. Our guest speaker or the speaker of the day, Manmohan Khemka ji, though he is widely popular amongst the CA fraternity, he is not a guest speaker, but he is a part of Pusa Road Study Circle in the sense that as and when we require, he is always there like a family member. And he is always there to share his knowledge with us and enriching us with the new things as well as. I will not go in detail because most of us knows about his achievements, but briefly I'll touch upon that he is a graduate from Delhi University, member of our institute and past LLB. Institute के various courses he's done, the business valuation, FAFD, CAT, NCFM, that is National Stock Exchange course, and the postgraduate is in the Vastu, that is is an area which is a very varied as compared to the professional achievements what he has. He is a visiting faculty for the GST, visiting faculty for the issue related to economic and finance taxation of the various social and economic forms. He has delivered a large number of lectures, which include 350 honorary lectures besides others. He is a co-opted member of the Indirect Taxation Committee of the Institute of Chartered Accountants of India and the various other committees, Information Technology Committee, and thus he has done masters in business finance course and the certificate course on business valuation of the institute. His contribution to not only the profession but also to the society, and he is a member of the CA Vichar Manch. He is the founder president of that and the patent trustee of Sri Agrasen International Hospital, trustee of the Balaji Nirog Dham, chairman in direct taxation committee of ICAS, trustee Agarwal Parivar Shakti, founder executive member of STAR, that is Society for Tax Analysis and Research, General Secretary Bharatiya Vitt Salakar Samiti, founder of the West Delhi Study Circle, founder Karolbagh Western CP Study Circle, then member of the Rameshwar Lal Meva Charitable Trust, associated with the Mohakam Singh Balwant Kaur Charitable Trust, life member of Sri Ram Krishna Seva Sansthan, Rotary Club member, is the president of that in 2005 and 6, and the president of the CA Apartment Welfare Association, and worked with the Swachh Bharat Abhiyan with the activities of the CA Vichar Manch include educational program. He has conducted for a large number of hours from the last several years, not several years, but 4-5 years when it was founded by him. And शिक्षा अभियान, चिकित्सा अभियान, सहायता, is a wide spectrum of the professional and other social and activities which benefit not only the profession but also the society. The guest speaker
to kindly enrich us with the knowledge and the जैन साहब आप म्यूटेड हो, शायद आवाज नहीं आ रही जैन साहब आपकी। नहीं, आप और तो सब, मेरी आवाज आ रही है ना खेमका जी आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जैन साहब की अभी अभी चली गई, पहले आ रही थी। एनीवे मैं बोलता हूँ सर, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से जैन साहब की हम आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। जैन साहब वेरी ब्रीफली इंट्रोड्यूस आवर learned speaker Manmohan Khemka ji, and I would like to add one more thing also. Earlier, Mr. Manoj Goyal was the speaker, but due to some problem, he was unable to speak today. So I immediately requested our Manmohan Khemka ji, our brother and learned speaker on the subject, and he immediately accepted our invitation without taking any minute. And with for this, I am thankful to him. And with this, I once again request you, sir, kindly deliberate on the subject. Over to Khemka ji. Thank you very much, Rajesh Bhai ji, and I am really delighted to have this opportunity to interact with the members. Respected my elder brother CA Rajesh Jain ji and CA Anand Dua ji, and all other my dear friends and seniors in the profession. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूसा रोड सीपी स्टडी सर्कल का और आप सभी का कि आप सबने मुझे ये मौका दिया मैं अपनी विचार फॉर्म GST 9 एंड 9C के ऊपर आपके साथ आज शेयर कर सकूं। राजेश जी ने बहुत सारी चीजें मेरे बारे में बताई हैं। मैं बहुत बहुत राजेश जी के काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि हम सभी लोग सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत सी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, पर हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी समटाइम्स नहीं होती है। तो मेरी अपनी सोशल एक्टिविटीज के दौरान में मैं मिलता हूँ बहुत लोगों से जो बहुत बहुत समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग समाज में प्रोफेशन के अलावा कहीं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से राजेश जी को या मुझे तक पहुंचाएं और हम उसको वाइड स्प्रेड लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजेश जी, हालांकि आज का टॉपिक नहीं है और कोड ऑफ एथिक्स पे शायद आप एक सेमिनार कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो एक बहुत 3 जो डेवलपमेंट है जिसके लिए हमने 2 साल तक संघर्ष किया और उसको आज हमने मॉडिफाई करवा पाए आप सभी के लोगों से, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय से शायद मुझे मौका नहीं मिला आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, तो ये मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता। जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी मैं समझता हूं, क्योंकि अगर GSTR 9 और 9C पे डेलिब्रेशंस के लिए आए हैं आज, तो हार्डकोर प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन को बड़े तन मन और संयम से और समय लगा करके कर रहे हैं। सर, कोड ऑफ एथिक्स में आप जानते हैं रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हुआ। वेरी वास्ट कोड ऑफ एथिक्स था। उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो जब हमने उसको प्रीलिमिनरीली डिस्कस किया और स्टडी किया तो हमें ऐसा लगा कि वो स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स के लिए और प्रोफेशन एट ए लार्ज के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट और अगर मैं ये कहूँ कि बड़े ड्रैकोनियन थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करके हमने एक स्प्रे और डिस्कशन चलाया, काफी उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और अल्टीमेटली हमने ये पाया कि ये प्रोविजंस वाकई ऐसे हैं जिनको तुरंत प्रभाव से विड्रॉ किया जाना चाहिए या इनको खत्म किया जाना चाहिए या इनको डेफर किया जाना चाहिए। वो 3 प्रोविजंस आप लोगों के समक्ष में कभी आए या नहीं आए मुझे नहीं पता। कोविड का समय था, 1 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट होने थे, मई 2020 में मेरे
समक्ष वो विषय आया तो मैंने उसको दिया और अपने पूरी सीए विचार मंच की टीम से डिस्कस किया, और ना केवल सीए विचार मंच की टीम से बल्कि राजेश जी जैसे अनुभवी लोगों से भी और सबसे मैंने डिस्कशन किया, और उसमें ये देखा कि नहीं, इसके ऊपर हमारे को एप्रोप्रिएट लेवल पे इस बात को उठा करके इसको करना चाहिए। तो 3 प्रोविजंस कौन थे, सबसे पहले तो मैं वो बड़ा ब्रीफली आपको बता दूं। एक था सर रिस्ट्रिक्शन ऑन द फीस फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्लाइंट, और वो ये प्रोविजन था कि 15% से ज्यादा फीस आप और हम अपने किसी भी ऑडिट क्लाइंट और उसके पूरे ग्रुप इंक्लूडिंग रिलेटेड पार्टीज, इंक्लूडिंग एसोसिएटेड पार्टीज, इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर और इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ वर्क, ना केवल ऑडिट बल्कि टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, कंप्लायंस, रिप्रेजेंटेशन, सबकी मिलाकर के टोटल फीस किसी भी एक ग्रुप से 15% से ज्यादा अपनी टोटल ग्रोस रिवेन्यू का नहीं ले सकते। अगर लेना चाहेंगे आप तो उसके लिए जिस तरीके के प्रावधान थे वो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बड़े ह्यूमिलेटिंग थे। लाइक कि आपको अपने क्लाइंट को सारी बात बतानी पड़ेगी कि लुक, मैं आपसे इतनी फीस अपने कंपोजिशन की ले रहा हूं, और जो कि हमने समझ में आया कि ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग है कि हम क्लाइंट को बताएं, और फिर क्लाइंट अगर एग्री करेगा तब हम उस काम को कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी हमें अपना पोस्ट क्वालिटी रिव्यू या प्री क्वालिटी रिव्यू कराना पड़ेगा कंपलसरीली उस क्लाइंट के काम का। तो ये प्रोविजन हमारी समझ में ऐसा आया कि इसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। इसके अगेंस्ट में हमने एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशंस किए। दूसरा बड़ा घातक जो प्रोविजन था वो ये था सर कि टैक्स रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ ए क्लाइंट, और वो ये प्रोविजन था कि आप अगर किसी भी क्लाइंट का ऑडिट का काम कर रहे हैं देन उसकी टैक्स कंसल्टेंसी एंड टैक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ये भी एसएमई सेक्टर के लिए हमने ऐसा समझा कि जो एसएमई एंटरप्राइजेज होते हैं उनको अंडर वन रूफ सर्विसेज चाहिए, और जब से 1949 से आईसीएआई का गठन हुआ है और इसके मेंबर सर्विसेज दे रहे हैं, टैक्सेशन एंड ऑडिट की सर्विसेज हैंड इन हैंड और साथ में दे रहे हैं, अंडर वन रूफ दे रहे हैं अपने सभी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। लेकिन ये एक तरीके का विच्छेद करने वाला प्रोविजन था, और बहुत से स्मॉलर टाउन में, क्या कहें मेट्रो टाउन में भी, टाउन 1 में भी, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 सब में सभी लोग ऑडिट क्लाइंट को टैक्सेशन का भी एक बड़ा सर्विसेज देते हैं। अगर ये प्रोविजन आ जाता तो लोगों के लिए भी और एंटरप्राइजेस के लिए भी बड़ी दिक्कत होती। इसको भी हमने प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंटेशन किया। तीसरा जो काम था वो था एक नो क्लॉज, नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज और उसका रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज थी और पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस थी, उनके ऑडिटर और उनके सीए एम्प्लॉइज, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन था अंडर नो क्लार में, दो सेक्शन 260 एंड सेक्शन 460 या 660, क्या मेरे को अभी सेक्शन भूल रहा है वो कोड ऑफ एथिक्स का, उसके अंडर में ये प्रोविजन था कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस अपने ऊपर एप्लीकेबल किसी भी लॉ का वायोलेशन करती है तो उस वायोलेशन को उस कंसर्न्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी ऑडिटर या एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, अगर वो विषय उसके समकक्ष उसके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता है। तो जब ये विषय समझ में आया तो हम तो ये लगा कि हम तो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस के काम से बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी विल फियर कि कहीं उसकी कोई जरा सी नॉन कंप्लायंस, कोई जरा सी मिस्टेक, कोई एरर, हम एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, एक एजेंसी बन जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ग्रेव हो, मटेरियल हो, नहीं हो, रियल में नॉन कंप्लायंस हो या नहीं हो, एक थ्रेट क्रिएट हो गई। अब इसमें थ्रेट डबल साइड से क्रिएट ये हो गई थी, अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो ये हमारे लिए ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अदर क्लॉज से रेगुलेट होती है, और अगर हम रिपोर्ट नहीं करते तो जो दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं लाइक सेबी, लाइक रेरा, लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लाइक लेबर कमिश्नरेट, ये हमारे ऊपर एलिगेट कर सकते हैं और चार्ज लगा सकते हैं कि हमने प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं किया। तो इसको भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया गया।
और अल्टीमेटली, आवाज नहीं आ रही राजेश जी आपकी, अल्टीमेटली 2 साल के सतत प्रयास और संघर्ष के बाद काउंसिल ने बेटर सेंस प्रिवेल्ड और काउंसिल ने तीनों ही प्रोविजंस को ड्रास्टिकली मॉडिफाई कर दिया और इनके जितने इल इफेक्ट थे उसको रिमूव कर दिया। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप निर्भय होकर के अपने प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं। 2 साल तक ये प्रोविजंस को डेफर रखा गया हमारे प्रोटेस्ट के बाद। इस सारे कार्य में अनरिक्वायर्ड डिसिप्लिनरी एक्शन भी मेरे अगेंस्ट में इनिशिएट किया गया, जो अभी भी ड्रॉप किया गया या नहीं किया गया मुझे नहीं पता, पर संघर्ष इस तरीके के विषयों पे मेरा और आप सब लोगों के सहयोग से जारी रहेगा, ये मैं आपको एश्योर कर। मैं यहाँ ऐड कर दूं मेंबर्स के लिए, ये जितने भी प्रोविजन अभी सर ने गिनाए हैं खेमका जी ने, जब ये इंस्टीट्यूट ने पास किए थे तो खेमका जी ने इसका बड़ा पुरजोर विरोध किया था, सोशली जैसे भी है, और बहुत सारे मेंबर्स का साथ भी मिला खेमका जी को, और आज उसी का रिजल्ट है कि बेटर सेंस प्रिवेल, और इंस्टीट्यूट ने वो जो भी अमेंडमेंट करके सबके सामने दिए हैं, और उसके लिए खेमका जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने मेंबर्स के हित में इस तरह की आवाजें उठाई। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब विद योर काइंड परमिशन अब मैं GSTR 9 और 9C पे बात करता हूं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 से ही अब ऑडिटर ने इसको सर्टिफाई नहीं करना है 9C को, ना बनाना है, ना कहीं अटेस्ट करना है, ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है। अब केवल और केवल असेसी ने इसको फाइल करना है और 9C पार्ट 1 भी असेसी ने ही सर्टिफाई करना है। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की हो सकती हैं, आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में क्वेरीज को लिखते चले जाइए। चैट बॉक्स को अवॉइड करेंगे तो बेटर है, क्वेश्चन एंड आंसर से ही सारी क्वेरीज को ले लेंगे बाद में। और इन सब के क्रिटिकल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने का तरीका जो मुझे बेस्ट समझ में आता है वो ये है कि हम फॉर्म को ही पूरा गो थ्रू कर लें और जो क्रिटिकल इश्यूज आते जाएंगे मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इंटरमिटेंटली किसी की क्वेरीज आएंगी और ऑर्गेनाइजर्स और मॉडरेटर्स चेयरमैन ऑफ द सेशन अलाउ करेंगे तो वो आपको ऑडियो ऑन करके क्वेरी रेज करने के लिए परमिशन देना चाहेंगे तो दे सकेंगे, अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी तो। नहीं तो क्वेश्चन एंड आंसर में तो जब आएंगे तो हम आखिरी में सारी क्वेरीज को ले लेंगे। तो अब विद दिस तो मैं राजेश जी मैं फॉर्म शेयर करना चाहूंगा। सर प्लीज। हाँ जी। तो सर फॉर्म्स में कई सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मेरा मानना और कहना यह है सबसे पहले कि फॉर्म्स को भरने से पहले, ऑल्दो हम अभी तक 4 बार ये फॉर्म्स 4 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भर चुके हैं और 5वें फाइनेंशियल ईयर के लिए भरने जा रहे हैं, फिर भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हमें याद नहीं रहती क्योंकि साल में एक बार की एक्टिविटी है। तो आप सभी लोग उनकी इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू हो जाएं ठीक से और फिर अकॉर्डिंगली फॉर्म को भरें। सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस को जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, इसमें सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस केवल वही फिगर्स और वही अमाउंट्स देने जो हमारे कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। अगर हम 21-22 के लिए हमारा फोकस रहेगा इस बार आज के डिस्कशन में फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसकी की अभी GSTR 9 की ड्यू डेट है 31 दिसंबर, तो जो अगर किसी की प्रीवियस भी है तो भी वो ये ध्यान रखें जो भी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि टेबल नंबर फॉर्म 9 से हम शुरू कर रहे हैं, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 इसमें जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड फिगर्स हैं केवल उन्हीं को फिल करना है। दूसरा, GSTR 9 के थ्रू कोई भी हमारी एक्चुअल लायबिलिटी है, आउटपुट लायबिलिटी या रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी, हम उसको एनहांस करके शो कर सकते हैं। अगर हमने GSTR 1 में
या 3B में शो नहीं किया है तो, लेकिन हम कोई भी एडिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते जीएसटीआर 9 के थ्रू, ना ही हम कोई भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी कर सकते हैं जीएसटीआर 9 के थ्रू। वो कार्यवाही हमारे को डीआरसी 03 के थ्रू ही करनी पड़ेगी, या 3B में अगर टाइम परमिट होगा। अगर हमें एडिशनल अवेलमेंट करनी है, 3B का टाइम मोस्ट लाइकली 21-22 का निकल चुका है, अब वो फिजिबल नहीं है, लेकिन रिवर्सल अगर हम करना चाहते हैं तो डीआरसी 03 में जाकर के वॉलंटरी रिवर्सल करके हम उसको कर सकते हैं। दो करोड़ से नीचे वाले लोगों के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 2 करोड़ से कम की है, उनके लिए ये फॉर्म ऑप्शनल है, लेकिन इट वुड बी डीम्ड टू बी फाइल्ड 31 दिसंबर तक। अगर हमने फाइल नहीं किया तो इट वुड बी डीम्ड टू बी फाइल्ड, और इसका मतलब ये है कि उस दिन से फिर आपकी डेट फ्रीज हो जाएगी, और जो भी हमारा शो कॉज नोटिस या ऑर्डर है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो डिपार्टमेंट के पास पावर है इशू करने की, वो 5 साल उस पीरियड से वहां से काउंट हो जाएंगे। चलो, कोई भी शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, अनलॉफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, अनलॉफुल अवेलमेंट ऑफ रिफंड, कोई भी अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज आती है तो उसको हम जीएसटी फॉर्म डीआरसी 03 के थ्रू रेमिट कर सकते हैं और कंप्लाइंस कर सकते हैं। नो पेनल्टी वुड बी लेविड अगर सेक्शन 73 का मैटर होता है और हम वॉलंटरीली कर देते हैं तो। सेक्शन 74 का मैटर होगा, अगर कोई इंटीमेशंस वगैरह आएंगी देन उसमें फिर कुछ पेनल्टीज की बात आ सकती है, लेकिन अगर हम 100 मोटो डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट करवा देते हैं क्लाइंट से, देन पेनल्टी नहीं है अगर टैक्स एंड इंटरेस्ट का कंप्लाइंस हो जाता है प्रॉपर तो। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं उनके गो थ्रू नहीं कर रहा, पर आपके लिए यहाँ पे रख दिया है। टैक्स पेबल अगर जो भी कुछ है हमारा, वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो उसके थ्रू पे कर सकते हैं। डीआरसी 03 में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसके थ्रू पे कर सकते हैं, एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज का जो लायबिलिटी है, या फिर इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। इसके अलावा कुछ भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमारा अवेलेबल है तो डीआरसी 03 फाइल करते वक्त उसको यूटिलाइज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कोई भी एक्सेस टैक्स अगर हमने पे किया है तो उसकी यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, उसके लिए हमें RFD 01A फाइल करना होगा और उसके थ्रू वो हमारे को प्रोसेस होकर के मिल जाएगा। तो GSTR 9 के 6 पार्ट हैं, बेसिक डिटेल्स हम सबको पता है, हम सब जानते ही हैं। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो पार्ट 2 में आएंगी। डिटेल्स ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर वो पार्ट 3 में है। टैक्सेस की डिटेल्स वो पार्ट 4 में है। पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो पार्ट 5 में आएगा, और एनी अदर इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो पार्ट 6 में आएंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स हैं, कहीं कोई ओवरलैप नहीं है, एक्सेप्ट जहां से ऑटो पॉपुलेटेड डाटा हमने उठाया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, टेबल नंबर 4। पार्ट 2 की हेडिंग लाइन बड़ा क्लियरली कहती है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जितनी भी हमारी आउटवर्ड सप्लाईज हैं या इनवर्ड सप्लाईज जिनके ऊपर की टैक्स पेएबल है, वो हमको टेबल नंबर 4 में यहाँ पार्ट 2 में देनी है। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। डिटेल्स ऑफ एडवांसेस
जिनके ऊपर हमारे को टैक्स लायबिलिटी है, दैट इज एडवांसेस अगेंस्ट सर्विसेज। एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, हम सबको पता है। इनवर्ड सप्लाईज चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। आउटवर्ड सप्लाईज में भी केवल वही सप्लाईज जिसमें कि टैक्स पेएबल है वो टेबल नंबर 4 में आएगी। सब तो हम देखते हैं फिर टेबल नंबर 4 के फिर फर्दर बाइफर्केशंस उन्होंने किए हैं। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, तो B2C की सप्लाईज हैं, ये यहां पर लेनी है हमें केवल और केवल B2C को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज की है। देन सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, वो सेपरेटली टेबल नंबर 4B में लेनी है। यहां पर UIN को भी जो सप्लाईज की गई है उनको भी यहां पर रिपोर्ट करना है। अगर कुछ सप्लाईज हमने ऐसी की हैं जो हमने टेबल 4 में रिपोर्ट करी हैं, PSUs को की हैं, जिन्होंने केवल TDS काटा है, अदरवाइज उनका रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर हमने उनको टेबल 4 GSTR 1 में रिपोर्ट किया है तो यहाँ 4B में भी उनको फिर रिपोर्ट करना है, B2B सप्लाईज में ही। देन जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू SCZ, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और पेमेंट विदाउट टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाली सेपरेटली रिपोर्ट होंगी। टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR 1 से ये हम इनको लिंक करेंगे। फिगर्स को करेक्शंस हो सकती है, ये इंडिकेटिव है। सप्लाई टू SCZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ सेपरेटली दिखाना है फिर। और डीम्ड एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स आप सभी लोग जानते हैं, सेक्शन 147 में पावर दी गई है डीम्ड एक्सपोर्ट को डिफाइन करने की। और नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 18/10/2017 में 4 तरीके की सेल्स जो एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस या EOU के यूनिट्स को होती हैं उनको हम डीम्ड एक्सपोर्ट्स कहते हैं। जो कंसेशनल रेट 0.1% के ऊपर की जाती है उसको डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं कहा जाता, वो वाली फिगर यहां नहीं देनी। वो सेल्स टू द मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑन कंसेशनल रेट है, वो रेगुलर B2B सप्लाई में जाएंगी, उनको डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं कहा जाता, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। डीम्ड एक्सपोर्ट्स में वो केवल सेल्स आती हैं जो कि एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस अगर हमारे रिसिपिएंट के पास है और उसके बेस के ऊपर अगर हम उसको कोई सप्लाईज करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, देन वो कवर होती है। उसमें कैपिटल गुड्स की भी सेल्स आती हैं, इनपुट्स की भी सेल्स आती हैं, उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी जो सेल होती है वो भी आती है। तो ये सारी सेल्स आप चाहें अगर डिटेल्ड किसी का हो तो नोटिफिकेशन नंबर 48 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसको रेफर कर सकते हैं। देन एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज पेएबल बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, तो जितने भी एडवांसेस हम सर्विसेज के अगेंस्ट में लेते हैं उनके ऊपर GST ऑन द रिसीट ऑफ द एडवांस पेएबल होता है। अगर वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल जो भी उसमें हमने एडवांसेस लिए हैं वो यहाँ पर डिटेल शो करनी है, एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स वाली डिटेल्स को नहीं यहाँ पर हमने शो करना है। और यहाँ पर ईयर एंड के ऊपर जो ऑल अनएडजस्टेड एडवांसेस हैं केवल वो आएंगे, जिनके इनवॉइस कट गए हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, वो भी यहाँ 4G में आ जाएगा सारा का सारा। और ये हमारा टोटल हो जाएगा 4H में, ऊपर 4A से लेकर के 4G तक का। ये हमारी आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स वाज पेएबल। नाउ 4I में क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस स्पेसिफाइड B2E, जो सप्लायर्स ने क्रेडिट नोट इशू किए होते हैं केवल हम उनकी बात करते हैं यहाँ पर, चाहे फिर वो B2B सप्लाईज के लिए हो, चाहे एक्सपोर्ट्स के लिए हो, चाहे SCZ के लिए हो, चाहे डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए हो, वो सब यहाँ पर आएंगे। जो B2C वाले होते हैं उसको हमको नेट करके शो करना होता है।
डेबिट नोट इशूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबाउ, अगर कोई डेबिट नोट अगेन इशू किए हैं तो उनकी डिटेल यहां पर आ जाएगी। सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, क्रेडिट और डेबिट नोट के अलावा और जितनी भी अमेंडमेंट हमने GSTR 1 में की है टेबल नंबर 9 के थ्रू, वो सब की सब यहाँ टेबल नंबर 4K एंड टेबल नंबर 4L में आएंगी। एडिशन वाली भी एंड टैक्स लायबिलिटी के रिडक्शन वाली भी सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पे आएंगी। इस तरीके से जाके ये हमारा टेबल नंबर 4M में एक फिगर आएगी जो सब टोटल होगा 4I से लेकर के 4L तक का। कोई भी हमने रिफंड वाउचर्स भी इशू किए हैं, जब हम एडवांसेस रिसीव करते हैं तो हम रिसीट वाउचर बनाते हैं जैन साहब, और जब हम एडवांसेस को विदाउट सप्लाइंग द सर्विसेज रिफंड करते हैं तब हम रिफंड वाउचर बनाते हैं। तो रिफंड वाउचर्स की भी डिटेल्स सारी की सारी यहां पर हमारे को शो करनी है। और ये 4N में हमारे पास आ जाएगा सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। तो और यहां पर ये 4N आ जाएगा जिसका यूटिलाइजेशन हमारा आगे जाकर के होगा। देन अगेन अब हम आते हैं सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। किसी भी रीजन से जो एग्जम्प्ट है, एक्सपोर्ट है, SEZ है, तो टेबल नंबर 4 में एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, टेबल नंबर 5A में सॉरी, टेबल नंबर 5B में सप्लाईज टू SEZs विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, टेबल नंबर 5C में सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सप्लायर की ऐसी सप्लाईज जो कि रिसिपिएंट उसका रिवर्स चार्ज में पे करेगा, हमने उसको टेबल नंबर 4 ऑफ GSTR 1 में शो किया है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं पे की है, रिसिपिएंट हैज टू पे, वो टेबल नंबर 5C में आएगी। देन 5D में एग्जम्प्टेड, 5E में नील रेटेड। एग्जम्प्टेड एंड नील रेटेड बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, समटाइम्स लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये राजेश जी दिया गया है कि आप इस टोटल नील रेटेड और एग्जम्प्ट को एग्जम्प्ट में ही शो कर दें, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन जो नॉन GST सप्लाई है इंक्लूडिंग नो सप्लाई, नॉन GST सप्लाई कौन सी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है, जो नेचुरल गैस की है, और नो सप्लाईज के जितने भी हैं शेड्यूल 3 की आइटम्स जितने भी हैं, वो सारी की सारी 5F में अलग से दिखानी है, उसको हमको एग्जम्प्टेड के साथ मिक्स नहीं करना है। तो ये सर फिर 5G जो 5A से लेके 5F तक का टोटल 5G में आएगा, और एग्जम्प्टेड या नील रेटेड या नो सप्लाई या नॉन टैक्सेबल के अगेंस्ट में जितने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिए गए हैं वो सब भी 5H और 5I में यहां पर हमको रिपोर्ट करने हैं। देन अगेन 5J एंड 5K के थ्रू जितनी भी सप्लाईज में अमेंडमेंट्स हुई हैं, वेदर फॉर रिडक्शन और फॉर एडिशन, जो टेबल नंबर 5 में हमने शो किए हैं जितनी भी सप्लाईज, उनके केवल अमेंडमेंट्स यहां पर आने हैं। देन टेबल नंबर 5M में हमारे पास टोटल आ जाएगा टर्नओवर ऑन विच टैक्सेस नॉट टू बी पेड। यहां पर 5G से प्लस 5L जो डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट के बाद, और टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस 4N प्लस 4 प्लस 5M माइनस 4G, ये सब हमारी यहां पर टोटल हो जाएगी 5N में। तो ये हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की टोटल 100% रिपोर्टिंग, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे हमारे पास इनवर्ड सप्लाईज लाइबल फॉर टैक्स हो, तो जितनी आउटपुट टैक्स से रिलेटेड आइटम या आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड आइटम है, ये टेबल नंबर 4 एंड 5 में कवर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं ITC के ऊपर। ITC की रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है। आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, अगर इशू टू इशू होंगी, कोशिश करते हैं उनको ले लें,
ये तो अभी 9 या 9C से क्वेरीज हैं, काफी लंबी लंबी क्वेरीज आपने लिखी हुई हैं चंद्रमोहन जी, तो फिर तो इसको हम सबको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फिर आखिर में ले लेंगे। ठीक है सर, इनको सबको आखिरी में ले लेंगे। टेबल नंबर 6 पे हम आते हैं। डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सर ये 6A जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड होएगा, आपका जितना भी हमने 3B फाइल किया है उससे यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगी। 6B में हमको बाइफरकेशन देना है, जो हमारी आईटीसी हमारे को इलिजिबल है या जो हमने अवेल किए हैं वो सारे के सारे, अगर जो हमने अवेल कर लिए लेकिन गलत अवेल किए हैं और हम उसको रिड्यूस करके शो करना चाहते हैं तो यहाँ हम रिड्यूस करके शो कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल अलग से नहीं कर सकते। जितनी हमारी अवेल्ड वाली है वो यहाँ शो करनी है, तो आप राइटली शो कर दें, बाकी को कोई जितना अवेल किया है जो डिफरेंस होगा उसको बाद में भी कैप्चर किया जा सकता है। इनपुट और इनपुट सर्विस को साथ में दे सकते हैं आईटीसी और इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, लेकिन कैपिटल गुड्स का आईटीसी अलग से देने की जरूरत है। ये इस बार ये मैंडेटरी हो गया, अभी तक हम सारे आईटीसी इकट्ठे देते थे, लेकिन 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए कैपिटल गुड्स का आईटीसी सेपरेटली रिपोर्ट करना है सर। देन 6C में हमें रिपोर्ट करना है सर, inward supplies received from unregistered person liable to reverse charge other than B above on which tax is paid or ITC avail। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आया हुआ है इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, वहां 6C में रिपोर्ट करना है। सिक्स डी में क्या रिपोर्ट करना है, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो देखिए हमारे को GSTR 9 में ही बाइफरकेशन मांगी गई है, पहले ही मांगी गई थी और अब भी है। तो हमारे को अगर याद हो इनकम टैक्स फॉर्म 3CD क्लोज 44 उसमें भी कुछ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज क्या क्या ली गई हैं या नहीं ली गई हैं, उनकी बाइफरकेशंस मांगी गई हैं। आगे आगे ये सारी बाइफरकेशंस सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज मांगेंगी, हमें ध्यान रखना है और इनको सेपरेटली रिपोर्ट करने की जरूरत है। 6C में देन मांगा गया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SEZ। तो ये हमारे 2B 3B में अपने आप नहीं आते हैं, ये इनको हमको यहाँ सेपरेटली रिपोर्ट करना है। 3B में हम इनको अलग से रिपोर्ट करते हैं। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम SEZ, यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। SEZ वाले अपनी रिपोर्टिंग खुद करते हैं, जितने भी टैक्स इनवॉइस SEZ इशू करते हैं उनकी रिपोर्टिंग वो खुद अपने GSTR 1 में करते हैं और फिर वो 2A में एंड 2B में रिफ्लेक्ट होती है, तो उनकी रिपोर्टिंग हमारे को सेपरेटली करनी है। यहाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम SEZ रिपोर्ट करनी है केवल। हालांकि फॉर टेक्निकल रीजन SEZ को भी इंपोर्ट माना जाता है, लेकिन उसको सेपरेटली करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए SEZ से रिवर्स चार्ज नहीं है, SEZ खुद फॉरवर्ड चार्ज में उसका इनवॉइस रेज करता है। इनपुट टैक्स रिसीव्ड फ्रॉम ISD, अगर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने ISD से रिसीव किया, ISD क्या होता है सर, ISD होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आज 5 साल से ज्यादा हो गए हैं GST को इम्प्लीमेंट हुए, और सर्विस टैक्स में भी राजेश जी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के कंप्लाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी कंप्लाइंस और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। तो विद योर परमिशन में थोड़ा सा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है यहाँ पर बता दूं, और ये क्रॉस चार्ज से कैसे अलग होता है इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता हूँ यहाँ फॉर द मेंबर्स बेनिफिट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो मल्टी रजिस्ट्रेशन वाली एंटिटीज हैं
मल्टी ब्रांच वाली एंटिटीज हैं, मल्टी यूनिट वाली लीगल एंटिटीज हैं, जब वो कोई ऐसी सर्विसेज रिसीव करती हैं या ऐसी सर्विसेज का इनवॉइस रिसीव करती हैं कि इनवॉइस तो किसी एक यूनिट के ऊपर रेज किया जाता है, लेकिन सर्विसेज डिफरेंट यूनिट्स को प्रोवाइड की जाती है या किसी अदर यूनिट को प्रोवाइड की जाती है, या कॉमन सर्विसेज होती है जो सब यूनिट के बेनिफिट के लिए होती है या सब यूनिट्स को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इनवॉइस किसी एक यूनिट के ऊपर रेज किया जाता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस हो, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, लेकिन थर्ड पर्सन से इनवॉइस रेज किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर से इनवॉइस रेज किया जाता है। तो इसके ऐसे जितने भी इनपुट सर्विसेज आती हैं, उनके लिए एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जितने भी इनवॉइस जो एक आउटसाइड वेंडर से आ रहे हैं इस तरीके की सर्विसेज के लिए, जो या तो कॉमन सर्विसेज है फॉर ऑल द यूनिट्स या डिफरेंट यूनिट्स, या किसी और दूसरी यूनिट के लिए वो सर्विसेज है, लेकिन इनवॉइस किसी और पे आ रहा है, तो उसके लिए उस यूनिट को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेके एंड देन उसमें जो क्रेडिट आया है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है बाय वे ऑफ एन इनवॉइस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंसर्न्ड यूनिट्स। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने नहीं लिया हो, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा देता हूं कि सपोज कीजिए कि हमने एक पेरोल प्रोसेसिंग एजेंसी हायर की है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो पेरोल प्रोसेसिंग का काम करती है। एबीसी के पास 5 यूनिट्स हैं अपनी, 5 यूनिट्स में मिलाकर के से सपोज 1000 एम्प्लॉइज हैं, उन सारे 1000 एम्प्लॉइज के लिए एक पेरोल प्रोसेसिंग का काम करा जाता है, सारा का सारा डिपार्टमेंट का उस XYZ कंपनी के थ्रू। तो XYZ कंपनी जो पेरोल प्रोसेसिंग का इनवॉइस है वो कॉर्पोरेट ऑफिस को दिल्ली में रेज कर देती है, सारा का सारा क्रेडिट उस कॉर्पोरेट ऑफिस के इनवॉइस में जाता है, लेकिन वो सारा क्रेडिट कॉर्पोरेट ऑफिस को बिलोंग नहीं करता, वो सारा का सारा क्रेडिट डिफरेंट यूनिट्स को बिलोंग करता है। तो ऐसे में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसको एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जितना भी क्रेडिट आया, से सपोज पर मंथ का 1 करोड़ रुपए का प्रोसेसिंग का बिल है, उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर 18% 18 लाख रुपए का जीएसटी लगा। 5 यूनिट्स हैं, उन 5 यूनिट्स में उनकी टर्नओवर के प्रोपोर्शन में उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इज आईएसडी। ये क्रॉस चार्ज से कैसे डिफरेंट है राजेश जी? क्रॉस चार्ज की जब हम बात करते हैं तो विद इन द यूनिट, विद इन द लीगल पर्सन डिफरेंट यूनिट की बात करते हैं। सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड के, जैसा मैंने बताया, अपनी 5 ब्रांचेज है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, 3 फैक्ट्रियां हैं, एक मार्केटिंग ऑफिस है, इस तरीके से 5-6 ऑफिस है। कॉर्पोरेट ऑफिस कॉर्पोरेट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लीगल सर्विसेज अपनी सब ब्रांचों को प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग ऑफिस मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज सारी फैक्ट्रीज को प्रोवाइड करता है। तो ये सब अपनी ही लीगल एंटिटी की डिफरेंट ब्रांचेस को सर्विसेज दे रहे हैं। ये अभी तक हम क्रॉस चार्ज नहीं लगा रहे थे। क्रॉस चार्ज माने क्रॉस इनवॉइसिंग ऑन द सेम लीगल पर्सन बाय इट्स डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये क्रॉस चार्ज है, यहां पर थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। मार्केटिंग की सर्विसेज मार्केटिंग यूनिट ने दी है वेरियस फैक्ट्रीज से, जहां से वो सेल्स होती हैं या डिस्पैच होती हैं उनको, इसके लिए क्रॉस चार्ज लगाने की जरूरत है। और ये इसके लिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो आईएसडी और क्रॉस चार्ज में फर्क ये है कि आईएसडी में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक आउटसाइड एजेंसी, आउटसाइड वेंडर होता है, जबकि क्रॉस चार्ज में लीगल एंटिटी की ही कोई एक यूनिट जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है वो सर्विस प्रोवाइडर होती है। तो इसको आप ध्यान में रखें। अभी तक आईएसडी के भी नॉन कंप्लायंस है और क्रॉस चार्ज के तो बहुत ही ज्यादा नॉन कंप्लायंस है, इनको हम ध्यान में रखें। और क्रॉस चार्ज के नॉन कंप्लायंस अगर रहते हैं तो वैल्यूएशन विल बी ऑन द ओपन मार्केट वैल्यू, प्लस जिन यूनिट्स के ऊपर क्रॉस चार्ज लगना है उनको अगर 100% क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो भी ये ओपन मार्केट वैल्यूएशन पे वैल्यू होनी है क्रॉस चार्ज। तो बड़ा क्रिटिकल है। अब
डिपार्टमेंट इसके ऊपर नोटिसेस भी देने शुरू कर रहा है, तो सभी लोग जरा ध्यान करके अपने क्लाइंट्स को इन दोनों प्रोविजन से, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और क्रॉस चार्ज से थोड़ा सा अलर्ट कर दें। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबव। अभी हमने ऊपर देखा बी में जितनी भी हमारी इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर आईटीसी था वो सब हमने ऊपर बी में क्लेम किया, लेकिन अगर हमने कोई भी रिक्लेम किया है क्रेडिट तो उसको हमें 6H में शो करना है, 6B में शो नहीं करना। रिक्लेम के इसलिए करते हैं, रिक्लेम करने के बहुत सारे वजह हो सकती हैं। हमने रूल 37 अभी हम करेंगे डिस्कस आगे, रूल 37 में कोई रिवर्सल किया है, या हमने किसी और वजह से कोई रिवर्सल किया है और उसको बाद में रिक्लेम करना चाहते हैं हमने कोई प्रोटेक्टिव रिवर्सल किया है और लीगल डिस्प्यूट सेटल होने के बाद रिक्लेम करना चाहते हैं, वो सब रिक्लेम हमारे को 6H में करने हैं। तो इसके बाद ये 6I आ जाएगा सर 6B to 6H का टोटल मिला करके कि हमने टोटल कितना आईटीसी अवेल किया। देन 6J 6I माइनस 6 से अगर हमने जितना 6I में टोटल अवेल किया और 6A में जितना हमने ऑटो पॉपुलेटेड 3B में रिपोर्ट किया था उसका आइडियली ये 0 होना चाहिए, लेकिन अगर कोई डिफरेंस है देन उसको हमें आगे एक्सप्लेन करना होगा। देन अगर हमने कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट्स लिए हैं ट्रांस 1 के थ्रू या ट्रांस 2 के थ्रू, जिन लोगों ने कभी कोई एरर कर दी और ट्रांस 1 या ट्रांस 2 के थ्रू क्रेडिट लेना भूल गए हैं, अभी भी अब विंडो ओपन की गई है 60 दिन के लिए, आज की डेट में भी वो ओपन है। ऐसे जो भी आपके क्लाइंट्स हों जिनको लगता हो कि कहीं ट्रांस 1 में क्रेडिट लेना उस समय में भूल गए 2017 में, वो आज ले सकते हैं। अब ये इस समय सबके लिए ओपन है, उसका प्रोसीजर उसका वे आउट समझ लीजिए और इसको आज भी आप अवेल कर सकते हैं। देन एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबाउ, तो 6M में हमें और कोई भी ऐसा क्रेडिट जो हमने ऊपर अवेल नहीं किया लेकिन हमें अवेलेबल है वो यहाँ पर करना है। यूजुअली आईटीसी 01 या आईटीसी 02 के थ्रू जो हमारे को क्रेडिट आता है वो हम यहाँ पे अवेल करते हैं। आईटीसी 01 एंड 02 क्या होता है, जब हम यूनिट्स चेंज करते हैं या जब हम ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट करते हैं या हम सक्सेशन करते हैं उस समय में, जब या हमारी टैक्स लायबिलिटीज चेंजेस होती हैं, तब आईटीसी 01 एंड आईटीसी 0T के थ्रू एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हमारा क्रेडिट ट्रांसफर होता है। उस क्रेडिट को हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर यहाँ पर 6M में हम यहाँ शो करते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर हमने जो प्रीवियस ईयर का क्रेडिट इस ईयर में लिया था, से सपोज 21-22 की बात कर रहे हैं, तो 20-21 का जो क्रेडिट 21-22 में लिया था उसको भी हम यहाँ रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ करते भी हैं और नीचे जाकर के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है मेरी समझ से, जस्ट एक रिकंसिलिएशन में आपको हेल्प मिल जाएगी और इस तरीके से टोटल 600 में जाकर के टोटल आईटीसी अवेल्ड यहाँ पर आ जाएगा। बहुत से लोग सब्सिक्वेंट ईयर वाले आईटीसी को भी ऊपर 6B में ही दिखाना चाहेंगे और कुछ लोग यहाँ पर 6M में अलग से दिखाना चाहेंगे। दोनों वे में अल्टीमेटली रिवेन्यू न्यूट्रल वे होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। देन सर अभी तक हमने जो किया वो आईटीसी अवेल का किया। अब हम देखते हैं कि टेबल नंबर 7 में हमने जो आईटीसी रिवर्सल किए हैं उनका क्या हमें करना है। तो एज पर रूल 37 अगर हमने कोई नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन किया है तो रूल 37 के अकॉर्डिंगली जो आईटीसी है उसको यहाँ पे शो करना है। 180 डेज की पेमेंट्स वाले मैटर की मैं बात कर रहा हूँ। देन एज पर रूल 39 अगर हमारे को कोई इनएलिजिबल आईटीसी ट्रांसफर हुआ है आईएसडी से, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से, वो 39 में करना है। इनपुट सर्विस या इनपुट्स का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल जहां करना है जब हम टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों सप्लाईज करते हैं, वो रूल 42 और 43 में रिवर्सल्स होती हैं। रूल 42 में रिवर्सल होती है इनपुट और इनपुट सर्विस की, रूल 43 में रिवर्सल होती है कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आईटीसी की। वो कब होती है, जब दोनों ही उस सिचुएशन में लगते हैं जब हम टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल दोनों काम कर रहे होते हैं, उस समय में ये रूल 42 एंड 43। ये देखा गया है
कि रूल 42 का रिवर्सल तो काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल रूल 43 का रिवर्सल नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही करने हैं। देन एज पर सेक्शन 17(5) जितने भी प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट्स हैं, मोटर व्हीकल से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड, इस तरीके के जितने भी क्रेडिट्स हैं, ये सब के सब अगर हमने कहीं लिए हैं और उनका रिवर्सल किया है बाद में, तो यहाँ पर शो करना है 17(5) में। अगर ट्रांस 1 का कोई रोंग क्रेडिट ले लिया या ट्रांस 2 में कोई रोंग क्रेडिट ले लिया और उसकी वजह से कोई रिवर्सल किया है, तो उसको यहाँ पे शो करना है। और इसके अलावा कोई और रिवर्सल कर दिया है आपने, सपोज कीजिए कोई प्रोटेक्टिव असेसमेंट के तौर पे कहीं कोई रिवर्सल कर दिया है, तो उसको हम यहाँ पर साइमल्टेनियसली 7H में शो कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमें ऑप्शन दी गई है कि हम ये सारे रिवर्सल एक साथ दिखा दें, 37, 39, 42, 43, बट मेरी सबमिशन ये है कि हमको सबको अलग अलग दिखाना चाहिए, जिससे क्लाइंट के ही रिकंसिलिएशन में इजी रहता है। Yes. तो इस तरीके से टोटल आईटीसी रिवर्स्ड आपका 7I में आ जाएगा, और 7Z में 6O - 7I नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं टेबल 8 की तरफ। अब ये जो टेबल 8 है ये भी आईटीसी से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारा 2A से रिकंसिलेशन करता है। तो जो हमारा आईटीसी एज पर हमारे 2A के लिए होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड है। 6A में ऑटो पॉपुलेशन होती है 3B से, और 8A में ऑटो पॉपुलेशन होती है 2A से। तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों को एक दूसरे से मैच हो जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैच नहीं होता है, रिकंसिलेशंस के डिफरेंस आते हैं, तो आप उसको रहने दीजिए, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन उसको अननेसेसरी मैच करने की कोशिश में कोई एरर ना कीजिए, ये कहना है। क्योंकि समटाइम्स 2A में भी कुछ रिकंसिलेशन जब आप 2A मंथ टू मंथ डाउनलोड कर रहे हैं वो उसमें 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जब यहाँ टेबल A में देखते हैं तो वो 2A में, तो वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेशन में नहीं आता है। उसके भी रीजंस हैं। उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है, जब प्लेस ऑफ सप्लाई आपके रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं होगा 2A वाली एंट्री का, तो वो यहाँ पर टोटल होकर के नहीं आएगा। तो इसको ध्यान में रखिए। इस तरीके के कुछ और भी डिफरेंस हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो 2A के मंथली वाले में दिखाई दे वो 2A यहाँ पर भी टोटल अमाउंट यहाँ पर 8A में पॉपुलेट हो, कुछ डिफरेंस हो सकता है उसमें भी। तो जो 8A है वही आपका वैलिड 2A है इस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड नंबर के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए अपने रिकंसिलिएशंस बनाइए टेबल 8 में। Then ITC as per sum total of 6B and 6H, 6B में जो हमने रिपोर्ट किया था और 6H में किया था, उसका जो सम टोटल है वो 8B में यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और उसके आगे फिर हम नीचे की कार्यवाही देखेंगे। 8C में क्या कहता है, ITC on inward supplies other than imports and inward supplies liable to reverse charge, but includes services received from SEZ received during financial year but availed in the next financial year up to specified date। अब ऐसा आईटीसी जो आपके यहाँ पर अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया गया है, सेम फाइनेंशियल ईयर में जिसमें 2A में अपीयर हुआ उसमें नहीं किया गया है, तो उसको यहाँ पर 8C में शो करना है। ए बी सी का जो भी डिफरेंस है A - B + C का, वो यहाँ 8D में आ जाएगा। अब हमारे को आगे अदर एक्सप्लेनेशन देनी है। आईटीसी जो अवेलेबल था लेकिन अवेल नहीं किया वो हम 8E में दे सकते हैं। आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल था वो 8F में दे सकते हैं। बेसिकली वो आपको ये ले जा रहे हैं कि जो एलिजिबल था वो आपने अवेल कर लिया, और उसके बाद में जो जो चीजें नहीं एलिजिबल हैं या अवेल नहीं की है उनको मार्क करते हुए बाकी को आप लैप्स कर दें। तो IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर 8G में आ जाएगा ये।
और 8H में आ जाएगा IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6C अबव। तो SCZ वाला 6G में है और 8H में IGST अवेल जो 6C में आया था वो यहीं पर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर आ जाएगी। 8I फिर अगेन 8G एंड 8H का डिफरेंस है। 8J में फिर वो आपसे पूछता है ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे हमने कोई पेमेंट किया हो IGST का, लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर रहे हो, तो वो यहाँ पर 8J में आ जाएगा। तो 8K फिर टोटल ITC टू बी लैप्स्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, 8E प्लस 8F प्लस 8J, इन तीनों को मिलाकर के कितना हम लैप्स करना चाह रहे हैं वो सब यहाँ पर 8K में रिपोर्टिंग हो जाएगी और हमारा ये ITC का 2A से रिकंसिलेशन भी पूरा हो जाएगा। अगर किसी वजह से 2A का रिकंसिलेशन पूरा नहीं होता तो डेफिनेटली असेसिंग ऑफिसर में मेक ए कॉल, वो आपको एक इंक्वायरी नोटिस या मिसमैच का नोटिस भेज सकता है। देन सर, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कितना टैक्स पेबल था, कितना टैक्स पे कर दिया, ये सारा का सारा रिकंसिलिएशन यहाँ पर हमें टेबल नंबर 9 में शो करना है। देन अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई DRC 03 के थ्रू पे किया है, अभी उसको नहीं शो करना, केवल जो 3B के थ्रू पे किए हैं टैक्सेस वो टेबल नंबर 9 में शो कर दें। DRC 03 के थ्रू अगर कोई हमने इंटरमिटेंटली बीच में पे कर दिए हैं उनको हम सेपरेटली देखेंगे। देन सर टेबल नंबर 10 में फिर कुछ हम ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल दी स्पेसिफाइड डेट। आप सब जानते हैं ये टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये सब्सिक्वेंट ईयर में की हुई ट्रांजेक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स के लिए है। इनको बड़ा केयरफुली हमें देखना है। जितनी भी सप्लाईज या टैक्स हमने एडिशंस की हैं नेक्स्ट ईयर में वो टेबल नंबर 10 में डालनी है, प्लस जितने भी डेबिट नोट फाइनेंशियल ईयर के बाद इशू किए हुए डेबिट नोट, जो भी विद इन द फाइनेंशियल ईयर डेबिट नोट इशू किए हैं और उस विद इन द फाइनेंशियल ईयर वाली GSTR 1 में वो रिपोर्ट हो चुके हैं, उनको यहाँ नहीं डालना। जो सब्सिक्वेंट ईयर के मंथ टू मंथ वाले जो अमेंडमेंट्स या डेबिट नोट्स हैं उनको यहाँ डालना है। सिमिलरली टेबल नंबर 11 में क्रेडिट नोट्स और के थ्रू जो अमेंडमेंट्स की हैं या एडिशनली जो हमने किसी और तरीके की अमेंडमेंट की हैं जिससे हमारा टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रिड्यूस हुआ है, वो टेबल नंबर 11 में डालना है। नाउ टेबल नंबर 12 एंड 13 में रिवर्सल ऑफ ITC टेबल नंबर 12 में डालना है। अगर हमने पिछले साल का ITC 20-21 का ITC 21-22 का ITC अगर हमने अवेल किया है, रिवर्स किया है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, 21-22 का 22-23 में रिवर्सल किया है तो 12 में डालना है, और अवेल किया है तो 13 में डालना है। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इशू किसी को है नहीं, सब लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर टेबल नंबर 10 एंड 11 के नेट इफेक्ट के तौर पे कोई टैक्स पेएबल आता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, तो वो यहाँ टेबल नंबर 14 में शो करना है और उसको डिस्चार्ज करेंगे DRC 03 के थ्रू। टेबल नंबर 15, 16, 17, 18, 19 अभी आगे की टेबल्स ऑप्शनल हैं अभी तक। इस बार के लिए भी ऑप्शन दी गई है कि हम चाहें तो इसको ना भरें, लेकिन इनको समझ लेते हैं और ये डाटा आप कैप्चर करना शुरू कर दें, क्योंकि नोटिस में ये आ रहा है बहुत सारे नोटिस, बहुत सारे इश्यूज, डिमांड्स पोर्टल पे रेज कर दी गई है, ईमेल से कम्युनिकेट कर दी गई, लेकिन असेसी उनको लुकअप नहीं करता, उनको ओवरसाइट से इग्नोर हो जाती है वो। टोटल अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, रिफंड सैंक्शंस,
रिफंड रिजेक्टेड, रिफंड पेंडिंग, टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस, कोई भी किसी भी इशू से रिलेटेड है, टोटल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ई अबाव, अगर डिमांड हुई और उसका कोई टैक्स पे कर दिया वो यहाँ टेबल एफ में। ऑल्दो ये इस साल के लिए भी ऑप्शनल है कि हम इनको भरें, बट हमको चाहिए कि इन सबको हमें भरने की कोशिश करनी चाहिए। टोटल डिमांड्स पेंडिंग आउट ऑफ ई अबाव, अभी भी कोई पेंडिंग है तो। देन ये टेबल नंबर 6, सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर ए में, डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143। डीम्ड सप्लाई अंदर सेक्शन 143 क्या होती है? अभी हमने ऊपर डीम्ड एक्सपोर्ट पढ़ा, अब हम डीम्ड सप्लाई समझते हैं। अंडर सेक्शन 143 क्या होता है? अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर कोई गुड्स गए हैं और वो डीम्ड ट्रीट किए जाते हैं एज ए सप्लाई, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम में रिटर्न नहीं होते हैं तो उनको एक सप्लाई मान लिया जाता है। तो ऐसी जितनी भी सप्लाईज हुई हैं उनको हमें यहाँ पर, जिनका की इनवॉइस रेज नहीं हुआ अल्टीमेटली, तो उनको डीम्ड सप्लाई में हमें यहाँ पे डालना है। इसी तरीके से सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे अगर गई है और 6 महीने के अंदर उसकी अप्रूवल नहीं हुई है तो वो भी डीम्ड सप्लाई हो जाती है, और सेक्शन 143 में उसको डीम्ड सप्लाई मान के उसका भी वैल्यूएशन करके उसका टैक्स पे करना होता है। तो अगर वो उनके इनवॉइसेस रेज नहीं हुए सेपरेटली तो उनको यहाँ पर सेपरेटली दिखाना है। देन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस यहाँ पे आ गया सेक्शन सी में। देन HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाईज की, तो ये भी हमारे को यहाँ पर देनी है। इस बार HSN समरी मैंडेटरी है, 4 या 6 डिजिट जितने भी देने हैं उतने दे दीजिए, और अगर आगे नहीं अवेलेबल है वो पूरा 8 डिजिट मांगता है तो बाकी के डिजिट के लिए 0 डाल दीजिए। सिमिलरली इनवर्ड सप्लाईज के लिए इस साल के लिए भी ऑप्शन है कि आप इसे चाहें तो ना भरें, बट अब हमें कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। देन लेट फीस, एंड बाय दिस ये हमारा GSTR 9 कंप्लीट हो गया है। राजेश जी अब 9C पे चले आगे या बीच में कुछ डिस्कशन है? मेरे ख्याल में 9C पे चलना चाहिए। ठीक है सर। हाँ। तो सर अब 9C पे चलते हैं। 9C के हम जैसा जानते हैं 2 पार्ट थे, 9C पार्ट ए एंड 9C पार्ट बी। अब केवल 9C पार्ट ए रह गया है, दैट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और पार्ट बी जो ऑडिट रिपोर्ट था वो खत्म हो गया है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, बीइंग ए CA हमें इसको सर्टिफाई एज एन ऑडिटर नहीं करने की जरूरत है। चलिए सर, इसमें भी हमारे को पहले 5 पार्ट थे, अब 4 पार्ट रह गए हैं। पार्ट 1 बेसिक डिटेल है, रिकंसिलिएशन, देन रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेस पेड, एंड देन रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलते हैं सर, हम एक एक करके करते हैं। पार्ट 2 से शुरू करते हैं, पार्ट 1 से ही शुरू करते हैं। अगर आप किसी और एक्ट में, किसी और लॉ में लायबल हैं ऑडिट के लिए तो उसको यहाँ पर अभी भी शो करना है, चाहे आप उसमें हो। इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन आई है या ये डिलीट किया है मुझे पता नहीं है फॉर्म में से। टेबल नंबर 4, देन टेबल नंबर 5A पे आते हैं पार्ट 2 में। टेबल नंबर 5A में हमारे को टर्नओवर शो करनी है उस रजिस्टर्ड पर्सन की जिसका कि हम ये पार्ट 9C भर रहे हैं। अगर किसी लीगल पर्सन के एक से ज्यादा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हैं और उसका एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड बनता है, इंडिविजुअल ब्रांच का या इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूनिट का नहीं बनता है, तो उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टर्नओवर ड्रॉ करके उस यूनिट की वो हमें शो करनी है। कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं कि टोटल कंसोलिडेटेड टर्नओवर 1-2 उसमें डाल देते हैं, बाद में रिकंसाइल्ड में उसका डिफरेंस करते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। केवल जिस यूनिट का फॉर्म 9C भर रहे हैं उसी यूनिट की टर्नओवर डालनी है। जब भी हम मल्टीपल यूनिट्स का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड बनाते हैं तो हम एक एक्सेल शीट
कंसोलिडेशन करते हैं जिसमें न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट अलग हट जाते हैं, लेकिन हमारे को ये बेसिक टर्नओवर इंक्लूडिंग टर्नओवर टू अदर डिस्टिंक्ट पर्संस वो यहाँ पर टेबल नंबर 5A में डालनी है और उसका कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट अलग से बाद में देखा जाए। तो ये ध्यान रखें। टेबल नंबर 5B, अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अनबिल्ड रिवेन्यू सर हमें पता है सभी लोगों को, अनबिल्ड रिवेन्यू वो रिवेन्यू होता है जो हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसमें वर्क एनहांसमेंट कुछ किया, कुछ काम किया है, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ सर्विसेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने अभी इनवॉइसिंग की पीरियड नहीं आई, इनवॉइस रेज करने की ड्यू डेट नहीं आई है ईयर एंड तक। तो ऐसे रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है AS 7 के अकॉर्डिंग भी, AS 9 के अकॉर्डिंग भी, और इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो इनकम टैक्स के आए हैं उनके अकॉर्डिंग भी ऐसे रिवेन्यूज को अनबिल्ड रिवेन्यूज के तौर पे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। सबके अलग अलग पर्पस है, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चाहे इनकम टैक्स, लेकिन उसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं होता। और इसीलिए हमारी टर्नओवर में 5A में वो अनबिल्ड रिवेन्यू इंक्लूड होता है, लेकिन GST के पर्पस के लिए हम उसको डिलीशन या एडिशन करते हैं। अगर बिगिनिंग का, ओपनिंग का अनबिल्ड रिवेन्यू है, पिछले साल के फाइनेंशियल में हमने उसको अनबिल्ड रिवेन्यू दिखाया था, तो अब GST ये सपोज कर रहा है कि उसकी बिलिंग हुई होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पर 5B में ऐड कर दिया और नीचे जाके क्लोजिंग वाले अनबिल्ड रिवेन्यू को लेस कर देंगे, तो जो नेट इफेक्ट है उसका वो इनवॉइसिंग में मान लिया जाएगा कि उसके ऊपर टैक्स पे होना ही चाहिए था। देन अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसे एडवांस जो अभी हमने टेबल नंबर 9 करते हुए, GSTR 9 करते हुए भी समझा कि कोई भी ऐसे एडवांस जो ईयर एंड पे अनएडजस्टेड रह गए हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर टैक्स पे होना चाहिए था, दैट इज ए टैक्सेबल वैल्यू, उसको यहाँ 5C में, लेकिन P&L में वो नहीं आई हुई है, इसलिए यहाँ 5C में हमने उसको ऐड कर दिया। देन डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अभी हमने डीम्ड सप्लाई की ऊपर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, या बाद में जो हमने किया जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, लेकिन यहाँ पर डीम्ड सप्लाई है वो जो शेड्यूल 1 में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारी नहीं आएगी, क्योंकि कोई मॉनेटरी वैल्यू उसके ऊपर नहीं लगाई गई है ऐसी सप्लाईज के लिए, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर GST एप्लीकेबल है ड्यू टू शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017, तो उसको यहाँ डीएम सप्लाई की वैल्यूएशन लेके हमें ऐड करना होगा। देन क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। तो ऐसे क्रेडिट नोट जो हमने ईयर एंड के बाद में इशू किए, लेकिन एनुअल रिटर्न में उनकी एडजस्टमेंट हमने ले लिया ऊपर फॉर्म 9 में, तो ऐसे क्रेडिट नोट्स को यहाँ 5E में शो करके डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत है। सिमिलरली ट्रेड डिस्काउंट्स अकाउंटेड फॉर इन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ट्रेड डिस्काउंट्स के बेस पे कोई GST की रिडक्शन नहीं होती, क्योंकि इसलिए यहाँ पर उसको ऐड करना होगा। P&L की टर्नओवर में वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, लेकिन GST की रिडक्शन इस पे नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा। एक अभी आज सुबह भी मेरे पास एक क्वेरीज आई कि ट्रेड डिस्काउंट्स के ऊपर क्या रिसिपिएंट को, जिसको ये डिस्काउंट मिला है, क्या उसको ITC रिवर्सल करने की जरूरत है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट्स के ऊपर सप्लायर को लायबिलिटी रिड्यूस करने की परमिशन नहीं है, केवल वही डिस्काउंट्स के ऊपर लायबिलिटी रिड्यूस करने की जरूरत है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू से रिलेटेड है और जो ऑलरेडी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, स्कीम के अकॉर्डिंगली, टर्म्स ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली मिलते हैं और जिनके क्रेडिट नोट GST वाले रेज किए जा सकते हैं। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट्स अदरवाइज मिल रहा है तो सप्लायर उसको लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता, और ऐसे केस में इन माय व्यू रिसिपिएंट को लेकिन अपना ITC रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि रिसिपिएंट ने टोटल पेमेंट 180 डेज में नहीं की है,
इसको स्क्वायर अप ऑफ अकाउंट इस तरीके से ट्रीट मानना एक मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है ये मैटर डिस्प्यूट में आके डिपार्टमेंट इसके ऊपर डिमांड रेज करे। देन टर्नओवर ये इस बार रेलिवेंट नहीं है। देन 5H अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे जो हमारी P&L की टर्नओवर में इंक्लूडेड है लेकिन जिसपे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। अनबिल्ड रेवेन्यू अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में हो रहा है सर, कहीं कहीं वहां भी पूरे तौर पे अनबिल्ड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पूरे तौर पे कंप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में तो अनबिल्ड रेवेन्यू की रिकॉग्निशन हो ही नहीं रही है। हमको बेटर अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए अनबिल्ड रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और इसकी रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन का एडजस्टमेंट समझनी चाहिए। अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उनको हम रिड्यूस कर देंगे। एंड वो एंड लोगों को हमने ऐड किया था ऊपर, बिगिनिंग वालों को यहाँ 5I में रिड्यूस कर लेंगे। क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएस। ऐसे और जो भी कोई क्रेडिट नोट हो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लिए गए हैं लेकिन जीएसटी में परमिसिबल नहीं है, उनको ऐड कर दिया जाए यहाँ पे 5J में। देन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ यूनिट टू DTA यूनिट, उसको यहाँ पर रिड्यूस कर लिया जाए अगर कोई भी इस तरीके की एडजस्टमेंट्स हुई है तो। टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर बीच में इंटरमीडिएट पीरियड में कंपोजिशन में रहे हैं। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर अंडर, ये क्या है? सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की बात करता है। वेरियस सिचुएशंस में किस तरीके से वैल्यू होगी अगर रिलेटेड पार्टी के अंदर ट्रांजैक्शंस है तो, या और दूसरी जो स्पेसिफाइड ट्रेड्स है उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शंस है तो सेक्शन 15 उनको गवर्न करता है। तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस बायर एंड सेलर के बीच में डिसाइड हुआ है वो अगर आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है या वो एक स्पेसिफाइड ट्रेड से रिलेट करता है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू चेंज हो सकती है, और अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यू टू इट्स वैल्यूएशन मैकेनिज्म गिवन इन सेक्शन 15। उसकी वजह से अगर कोई चेंज होता है वो 5M में हमें यहाँ पर शो करना है, उसको हमें ध्यान से देखना है। फिर है एडजस्टमेंट, इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल यही हो सकता है कि क्रॉस चार्ज में अगर हमने कुछ वैल्यूएशंस लगाए बिना सप्लाईज की हैं तो सेक्शन 15 विल बी अट्रैक्टेड, ओपन मार्केट वैल्यू पे एडिशन होगी और ओपन मार्केट वैल्यू की वैल्यूएशंस यहाँ पर भी एडजस्टमेंट इन टर्नओवर में आ सकती है। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन प्लस या माइनस, ये आपका टर्नओवर की एडजस्टमेंट्स यहाँ पर जो भी हमने की है उसका हमारे को इम्पैक्ट मिल जाएगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के ऊपर कोई भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। देन एडजस्टमेंट्स इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव, और अगर कोई अदरवाइज है तो उसकी हम यहाँ पर 5O में शो कर दें और इस तरीके से एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट ऊपर 5A से लेके 5O तक कैलकुलेट होके ऑटो पॉपुलेटेड में 5P में यहाँ पर आ जाएगी। टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, जो GSTR 9 में डिक्लेयर की थी हमने, सीरियल नंबर 9, 5 एंड 10 एंड 11, वो यहाँ पर हमारी आ जाएगा 5Q में, और अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर हमारी Q-P करके 85R आएगा। इसके फिर अब हमारे को रीजंस नीचे देने होंगे टेबल नंबर 6 में। यहाँ हम इनके जो भी रिकंसिलेशन, इतने सब रिकंसिलेशन करने के बाद भी कुछ डिफरेंस रह गए हैं तो राजेश जी इसका यहाँ पर हम रिकंसिलेशन दे सकते हैं और मैटर को क्लोज किया जा सकता है। देन अब हम करते हैं रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। ये टेबल नंबर 6 हमारी पूरी हो गई है। टेबल नंबर 7 पे पढ़ते हैं रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट 5P में जो आफ्टर एडजस्टमेंट टेबल आ गई वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी 7A में। इसमें फिर हम वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाई, नो सप्लाई, इन सब को हम यहाँ ऐड करेंगे।
जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ ऐड करेंगे, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इसको ऐड करेंगे, और टैक्सेबल टर्नओवर यहाँ पर एज पर एडजस्टमेंट अबाउ 7E में हमारी यहाँ ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगी। देन 7F में हमने लेना है राजेश जी टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, टेबल नंबर 4N-4G प्लस 10-11 उसका इंपैक्ट, और फिर 7F और 7E का 82 करके यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, उसके रीजन हमें टेबल नंबर 8 में देने। रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन, कितना टैक्सेबल था, किस रेट से टैक्सेबल था, दिया कितने रेट से, वो सब यहाँ रिकंसिलेशन हमें रेट वाइज सारा का सारा देना है, और पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट वगैरह सब का सब करके, और यहाँ टेबल नंबर 9 में देना है डिटेल में, और 9P में फिर उसका ऑटो पॉपुलेशन ऊपर से होकर के एडिशन होके आ जाएगा। फिर टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, और अनरिकंसाइल्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट अगर कोई है, और उसके रीजंस हम टेबल नंबर 10 में दे देंगे। कोई एडिशनल अमाउंट पेबल था बट नहीं पे हुआ, वो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, इसको फिर हम DRC 03 में पे कर सकते हैं बाद में दोबारा से। अब हम आते हैं सर टेबल नंबर 12A में। अब ये हम ITC के रिकंसिलिएशन के लिए थोड़ा सा चल लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट, सिमिलरली जो केवल उसी स्टेट का ITC है जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए 9C भर रहे हैं, केवल वो ITC यहाँ पे देना। ITC बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो यहाँ 12B में आ जाएगा कि अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में हमने क्लेम किया था बुक्स में। ITC बुक्ड हमने अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में किया था, लेकिन क्लेम करंट फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो इसका मतलब 21-22 के लिए कर रहे हैं, तो 20-21 का ITC 21-22 में जो हमने क्लेम किया वो यहाँ आ जाएगा। देन 12C में ITC बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, ये 12C में आ जाएगा। ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ऑटो पॉपुलेटेड हो गया ABC की एडजस्टमेंट से। ITC क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न, यहाँ पर डिक्लेयर करना है जो भी एनुअल रिटर्न में किया हमने, और फिर अनरिकंसाइल्ड ITC के यहाँ पर रीजंस दे देने हैं। टेबल नंबर 14 रिकंसिलेशन ऑफ ITC डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न विद ITC अवेल्ड ऑन एक्सपेंसेस, ये अभी भी इस साल के लिए भी ऑप्शनल है, लेकिन हमको इनको बाइफरकेट करके अपने अकाउंटिंग मास्टर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब हमारे धीरे धीरे फिगर्स निकलनी शुरू हो जाए। इस साल के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अपलोड नहीं होती इसके। देन टेबल नंबर 16 में टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस इन ITC, और सर ये टेबल, ये फॉर्म 9 आपका C कंप्लीट हो गया। 9 का जो पार्ट सेकंड है ऑडिटर्स रिकमेंडेशन, ये ओमिट हो चुका है, अब इसकी अब आपको जरूरत नहीं है भरने की, क्योंकि अब ऑडिटर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो 9-9C ये फॉर्म्स को हमने गो थ्रू कर लिया। अब कुछ क्वेरीज आई हुई हैं सर, उसको लेने के लिए भर सकते हैं जैन साहब हम? राजेश जी Why not? We should take. ठीक है सर, तो अब कुछ क्वेरीज को ले लेते हैं, एक एक करके क्वेरीज को हम लेते चले जाएंगे जी। राजू कुमार जी की क्वेरीज है, कंपनी हैविंग फैक्ट्री इन नोएडा एंड सेल्स ऑफिस इन दिल्ली, ऑल गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम नोएडा GSTN टू दिल्ली, then it has sales to customer through Delhi GSTN. My question is, what is the audited financial turnover for table number 5A of GSTR 9C for Noida GSTN as interstate branch transfer is supply for GST? So sir, जितनी GST की टर्नओवर है
हम जीएसटी की ही टर्नओवर की बात कर रहे हैं वहां पे। वो इंटर यूनिट जब आपकी कंसोलिडेशन जीएसटीएन पोर्टल पे बैक एंड पे होगी वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वहां जीएसटी नंबर टू जीएसटी नंबर है। एक ही लीगल एंटिटी के कितने जीएसटी नंबर में आपस में ट्रांजेक्शन हो रही है, वो टर्नओवर रिकंसिलिएशन वो अपने आप कर लेंगे, उसकी कोई चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन नोएडा से दिल्ली जितनी भी टर्नओवर हमने की है वहां वो टेबल नंबर 5A में इंक्लूड होगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो व्हाट अमाउंट टू बी फीडेड हियर, वेदर इट विल बी जीरो और ग्रोस अमाउंट? यस, ऑब्वियसली ग्रोस अमाउंट जो भी आपने यहाँ पर इनवॉइसेस उनको रेज किए हैं उनकी वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। चंद्रमोहन जी की क्वेरीज है सर। क्वेरी 1 चंद्रमोहन जी राणा साहब को नमस्कार है। GSTR 9 part 3 table 6A is auto generated, which is table 4A of GSTR 3, which includes GST availed for previous year B6. Table 6B figures which we have to input will also include previous year ITC availed, so that the difference in table 6J is nil. GSTR, okay sir, ये तो आपने information दी है। GSTR 9 part 3 table 8A is ITC as per 2A, which reflects ITC only for the year 21-22. Table 8B is ITC as per sum total of table 6B and 6H. Therefore, table 8B will have ITC availed for 2021. This means table 8 will show difference of ITC. सर मैंने आपको ये बताया कि जहां टेबल 6B की हम बात कर रहे हैं वो टेबल 6B में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जितना, क्योंकि जब 3B हम भर रहे हैं तो 3B भरते वक्त हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है, वो हम टोटल अमाउंट भरते हैं और वो हम टोटल अमाउंट वहां ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि 6 में बताया और 6H में उसकी फिगर एक अलग से देने के लिए बात की है, तो अगर हम 6B और 6H को फर्क कर दें प्लस बाकी का जो हमने सब्सिक्वेंट पीरियड में लिया है उसको 6M में डाल दें तो हमारा रिकंसिलिएशन हो सकता है। लेकिन अगर 6B में भी आपने सब्सिक्वेंट पीरियड वाला डाल दिया तो भी कोई इशू नहीं है। दोनों टेबल 8 और टेबल 6 इंडिपेंडेंट रिकंसिलिएशन है। वहां जाकर के एक छोटा सा मिसमैच आता भी है तो उसको हम लेटर ऑन 9C में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो इसलिए टेबल 8 की जो कंपोजिशंस और रिकंसिलिएशंस हैं उससे टेबल 6 को मिक्सअप ना करें। हाँ ये ध्यान रखें कि टेबल 6B में आप किस तरीके से शो कर रहे हैं, क्योंकि 6B के पर्टिकुलर्स और 2A के पर्टिकुलर्स कभी भी सेम नहीं होंगे, तो दोनों को अलग तरीके से भरने की जरूरत है, इसको आप ध्यान में रखते हुए करें। और अगर 6B में उसको इंक्लूड करके आगे करते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई डिफरेंस भी रह जाता है टेबल ए के फाइनल में तो उसको हम बाद में शो कर सकते हैं, उसको रिकंसिलिएशन में आंसर कर सकते हैं, कोई इशू इसमें है नहीं। क्वेश्चन 2 है चंद्रमोहन जी का। टेबल 8C of GSTR 9 for the year 18-19 had bifurcation of GST between previous year and next year, which is reproduced below. Why this bifurcation has been removed from the year 1920? इसका तो सर देखिए मैं आंसर नहीं दे सकता, पर हाँ 9C में इसके रिकंसिलिएशन के लिए ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबिलिटी है, तो आप वहां पर इसके रिकंसिलिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए 9 और 9C का रिकंसिलिएशन बनाया गया है कि हम दोनों को जो भी ओवरलैपिंग हो रही है उसको मैनेज कर लें। टेबल GSTR 9 for, please clarify, GSTR 9 for 2018-19, टेबल 8C for फाइनेंशियल ईयर 2017-18, ITC on inward supplies other than import and inward supplies, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं राणा साहब। Next question is Jolly Sharma ji. नहीं, इन्हीं का एक और भी क्वेश्चन है दोबारा चंद्रमोहन जी का। ये तो हो चुका चंद्र जी। जोली शर्मा जी का क्वेश्चन है,
अलाउ मी टू स्पीक है सर, ये टाइप नहीं कर पा रही हैं, अगर इनको अलाउ करते हैं, अगर ये लाइव है इनको अलाउ करते हैं तो आप देखिएगा बाद में। जी, उमेश ठीक है। कोठारी जी का क्वेश्चन है, उमेश कोठारी जी का क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2021 टू बी करेक्टेड। ये शायद किन्होंने किसी का आंसर दिया है, ये मैं क्या पूछना चाह रहे हैं उमेश कोठारी जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या तो ये रीराइट करें अपना क्वेश्चन। रविंद्रन एम पोथुवल, GSTR 9(8)A on GSTR 2A as auto populated as per portal, and it compares with GSTR 3B where negative value is excess claim but registered person avail strictly as per GSTR 3B. Such difference may happen, so should 8A represent unless it is as per GSTR 3B। तो बिल्कुल रविंद्रन जी आप ठीक कह रहे हैं। यस, जो टेबल 8 है वो बेसिकली 2A से रिकंसिलिएशन के लिए है, एक्चुअल वो प्रवेल करेगी, जो प्रवेल करेगी वो 6 से करेगी, बट क्योंकि 2A में और 2B में अपीयर होना भी अब एक मैंडेटरी कंडीशन हो गई है, तो इसके रिकंसिलिएशंस को हमको ध्यान से करना चाहिए। आपने एब्सोल्युटली चंद्रमोहन जी की क्वेरी का आंसर ठीक किया है, धन्यवाद है आपका। जोली शर्मा जी का क्वेश्चन आया है अब दोबारा से, ये किसका रह गया, उमेश कोठारी जी का। उमेश कोठारी जी का क्वेश्चन है B2C सप्लाई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 वाज अमेंडेड इन सितंबर 21 बाय एडिंग B2B एंट्रीज and reducing B2C entries for last year in amendment table. Now in GSTR 9, B2B supply is coming less by the same amount as was changed from B2C to B2B. Further, through total tax payable is coming same. सर अगर आपने B2C सप्लाई को अमेंड किया है एंड एडिंग B2B है, तो B2B तो ओरिजिनल एंट्रीज हैं सर, वो इनवॉइस की वैल्यू सेम होती है, इनवॉइस की डेट क्योंकि प्रीवियस ईयर होती है तो वो उसको वहां से उठा लेगा। नाउ इन GSTR 9 B2B supplies is coming less by the same amount as was changed from B2C to B2B. Further, through total tax payable is coming same, IGST is increased and CGST SGST is reduced by amount for last year amendment have increased the B2B supply, but can we reduce IGST to the current year liability and increase the CGST and SGST? Kindly note B2B supply was not interested but B2C was shown interested. सर देखिए इसके लिए फिर आपको जो आपने करेक्शन करी B2C की B2B में, B2B की B2C में, उमेश जी वो एक अलग करेक्शन है, और उसकी जब आपने वो करेक्शन कर दी, B2B की भी करेक्शन आपकी इनवॉइस की डेट से हो जाती है, और B2C में भी आप मंथ टू मंथ में जाकर के करेक्शन करते हैं तो वो अलाउ हो जाता है, और वो उसी अकॉर्डिंगली GSTR 9 में कैप्चर कर लेगा। लेकिन जो आपकी टैक्स विद इन द टैक्स एक्ट जो चेंजेस हैं, टैक्स लायबिलिटी जो चेंजेस हैं, IGST वीजा विज CNS एंड CNS वीजा विज आई, इसको आपको टोटल लायबिलिटी को, क्योंकि ये मिस्टेक आपने करी है GSTR 1 में, तो टेबल नंबर 9 में जाके अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अलग से, और अगर आपने ये मिस्टेक 3B में की है तो 3B में सेल्फ एडजस्टमेंट करके इनको करना पड़ेगा, और इसका भी सेल्फ एडजस्टमेंट 3B में करने का भी टाइम अगेन फिर वही है सितंबर 21 तक का था। तो अगर वो नहीं किया गया है देन उसको फिर आपको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। जब कभी कोई डिमांड आएगी तब असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी कि हमारा इस तरीके से इंटरचेंज हो गया, रिवेन्यू न्यूट्रल है, लॉ में प्रोविजन है, इस तरीके की डिमांड में कोई हमें एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना। बट यस, असेसिंग ऑफिसर आपको ये कह सकता है कि एक टैक्स का रिफंड लीजिए और दूसरे को पे कीजिए। तो ये एक चैलेंज आ सकता है। इसके लिए अगर कहीं कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके की एरर्स बहुत से लोगों को हुई है, तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट को इसको विदाउट आस्किंग फॉर रिफंड इनको इंटरचेंज करके, असेसमेंट करके और इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ करनी चाहिए।
इसके साथ साथ इनको है ना एक एग्जॉस्टिव या डिटेल्ड रिकंसिलिएशन बना के अपने पास फाइल में रख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी। तो जोली शर्मा जी का वैसे मैंने देखा है जी कि ऐसी एडजस्टमेंट डिपार्टमेंट वाले कर लेते हैं अगर बातचीत हो जाए तो। एक में हुई भी है। तो देखिए तो अनऑफिशियली दुआ साहब ने कहा है कि हुई है, तो हाँ, आप उसका लाभ उठाएं, कर देखिए लेते अगर हैं। मान जाते हैं तो ठीक है। अगर वो कर चाहें तो कर लेते हाँ हैं। जी। हाँ जी। जोली शर्मा जी का क्वेश्चन है, सर एसएससी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। He received notice for conducting audit for 2018-19 in GS19. In GSTR 9 of 18-19, he shown reduction in ITC due to composite nature of taxable and tax-free goods. Apart from mentioning it into GSTR 9, he has not filed DRC 03. Now, what should I do? Should I file DRC 03 now, even before starting audit, or I should wait for GST audit to be completed by the department? देखिए 3 तरीके की प्रोसीडिंग जोली जी होती है डिपार्टमेंट की। एक तो ऑडिट की प्रोसीडिंग है, एक एंटी इवेजन की प्रोसीडिंग है, और एक रेंज की असेसमेंट की प्रोसीडिंग है। आपका अभी ऑडिट की प्रोसीडिंग हुई है। ऑडिट की प्रोसीडिंग में अगर वो इसको फाइंड आउट, आपको क्योंकि अपनी ये मिस्टेक और अपनी ये शॉर्टफॉल पहले से पता है, आप इसको DRC 03 के थ्रू आपको पे कर ही देना चाहिए, विद इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए, जिससे कि सेक्शन 73 का ही मैटर बनेगा और कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वेट करना चाहती हैं कि ऑडिट वाले अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तभी हम पे करें, तो ऑडिट जब होगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो आपको बताएंगे इस तरीके का गैप आया हुआ है, उस समय में भी आप इसको विद इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। यूजुअली ऑडिट टीम बिफोर इशूइंग एनी लेटर और बिफोर इशूइंग एनी शो कॉज नोटिस आपको एक ऑडिट पैरा इशू करती है। रादर ऑडिट पैरा इशू करने से पहले भी आपको इंटीमेट कर देती है कि ये ऑडिट शॉर्टफॉल है। अगर उसको कंप्लाई कर देते हैं उसी समय में, फिर कोई ऑडिट पैरा भी इशू नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो उनके इंटरनल पर्पस के लिए होगा। ऑडिट पैरा इशू होने के बाद भी आप कर सकते हैं, तब भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी जब तक कि वो 74 में ऑडिट पैरा इशू ना करें या शो कॉज नोटिस इशू करने की तैयारी ना करें। तो इसलिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेज इसको लगे आपको, पेमेंट तो इसकी DRC 03 के थ्रू ही होगी। दिस ऑल योर स्ट्रेटेजिक कॉल। संजय जसवानी जी का क्वेश्चन इनकम्प्लीट, जावरानी जी का, संजेश जावरानी जी, इनका क्वेश्चन कुछ अभी शायद इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। संजेश जी दोबारा अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। अदिति अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल हैज फ्यूचर एंड ऑप्शन टर्नओवर इन इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। My question is how to report the F&O turnover in GSTR 9C. मैडम F&O की जो भी टर्नओवर है बेसिकली वो नो सप्लाई की टर्नओवर है, और जब आप उसको शो करते हैं तो वो जो मैंने नो सप्लाई वाला कॉलम आपको बताया, नॉन GST और नो सप्लाई, वहां पर इसका जो भी आपका है उसको डाल दीजिए। कल्पना जी का क्वेश्चन है, वेयर टू शो फाइनेंशियल ईयर 20-21 परचेजेस अवेल्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 टिल सितंबर। तो 20-21 की परचेजेस जो हमने 21-22 में अवेल की हैं, उसके लिए तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिपोर्ट किया होगा, और जहां प्रीवियस जब आपने 20-21 का वो भरा था GSTR 9, उसमें आपने उसको कर दिया है ऑलरेडी, और इसको दोबारा से अभी आपको कहां पर रिपोर्ट करने की जरूरत है, एक बार फॉर्म 9 को दोबारा से देख लेंगे, और मेरे ख्याल से इसमें आपको अभी दोबारा से कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित कसद जी का क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल ईयर 20-21 वी हैव शोन 1 इनवॉइस इन B2C। और क्वेश्चन क्या है अमित जी? ये नहीं इन्होंने क्लियर किया है, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ अभी, आपने शायद आगे लिखा है, इनका नीचे एक फॉलोअप है। इन अप्रैल 21 इन B2C इन अप्रैल 21 इन फाइनेंशियल ईयर 20-21 वी हैव शोन 1 इनवॉइस एज B2C। इन अप्रैल 21 वी केम टू नो दैट said invoice is not B2C but we have got
GST number for the said invoice. The invoice uploaded in April 21, GSTR1 with old date 15/3/2021. Because of this, turnover increased by in financial year 21-22. B2B invoicing showing in GSTR9 20-21. To match the same, we have reduced B2C in April 21. सर आपको अप्रैल 21 में 20-21 का B2C जिस मंथ का था वो उसमें जाकर के रिड्यूस करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है, और ये अब इस बार अब आपके लिए एक मिस्टेक हो गई है जिसको अब रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये सेल्फ एडजस्टमेंट आपने की है, पर मुझे नहीं पता ये सेल्फ एडजस्टमेंट आपको डिपार्टमेंट अलाउ करेगा अप्रैल में या नहीं करेगा। तो लेट्स क्रॉस अवर फिंगर कि अगर डिपार्टमेंट आपको रिवेन्यू न्यूट्रलिटी के ऊपर ये सेल्फ एडजस्टमेंट उस पर, क्योंकि उस समय में आपको अमेंड करने का उस मंथ की टर्नओवर B2C को प्रीवियस 20-21 की टर्नओवर को अमेंड करने का टाइम था, आप नहीं कर पाए, तो लेट अस सी। पर यस, थोड़ा सा अलर्ट रहें, डिपार्टमेंट इसको अलाउ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। युवराज तिवारी जी का क्वेश्चन है, सर काइंडली डिस्क्राइब अबाउट वेयर टू शो सेल ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर टेबल 5, 5O और 5A और एनी अदर फील्ड। तो उसमें जहां सर हमने डिस्कस किया था एनी अदर सप्लाईज, वहां पर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स को हमने शो करना होगा टेबल नंबर 9 में। तो टेबल 9 तो बिल्कुल एकदम अलग है, और फिर उसकी जब हम 9C से रिकंसिलिएशन करेंगे तब ये इशू आपको आएगा कि ये कैपिटल का है या रेगुलर रिवेन्यू है। वहां पर उसके लिए अप्रोप्रिएट टेबल दी हुई है, वो अभी जो हमने फॉर्म में डिस्कस किया उसको आप देख लीजिए। हितेंद्र ठक्कर जी का क्वेश्चन है, इन विच टेबल ऑफ GSTR 9 टैक्स पेड थ्रू DRC 03 ड्यूरिंग द ईयर टू बी शोन। सर ये नहीं, वहां DRC 03 के थ्रू जो करना है किया है उसको टेबल नंबर 9 में शो करने की जरूरत नहीं, GSTR 9 में कहीं शो करने की जरूरत नहीं है, 9C में जाकर के इसकी को आपको शो करने की जरूरत है, और वहां पर वो हो जाएगा। राहुल जी का क्वेश्चन है, सेल्स क्रेडिट नोट ट्रांजेक्शन 20-21 शोन इन 21-22 GSTR 1, हाउ टू शो इन GSTR 9। हम ये डिस्कस कर चुके हैं सर डिटेल में, राहुल जी आपने उसमें रिकलेक्ट कर लिया होगा। 9 एंड 9C में दोनों जगह पर द एप्रोप्रिएट टेबल्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं क्रेडिट नोट्स की, उसको आप एक बार रेफर कर लीजिए उन टेबल्स को। नीरज रस्तोगी जी का क्वेश्चन है, सर इन टेबल 8C वी नीड टू शो ITC ऑफ 20-21 क्लेम्ड इन 21-22 ऑफ ITC ऑफ 21-22 क्लेम्ड इन। यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सौरभ केजरीवाल जी का क्वेश्चन है, वेयर कैन बी डिस्क्लोज ITC रिवर्सल पर्टेनिंग टू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांजिट एट द ईयर एंड इन। स्टॉक इन ट्रांजिट का ITC रिवर्सल अगर आपने ITC का अवेल कर लिया है क्या, तो ITC का रिवर्सल तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आपको 3B के थ्रू इस ITC का रिवर्सल करना चाहिए था। से सपोज आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई मार्च का इनवॉइस आया, मार्च 22 का, उसका आपने ITC ले लिया मार्च 22 की रिटर्न में, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो मार्च 22 में ट्रांजिट में था और उसको आपको ITC नहीं लेना चाहिए था क्योंकि एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई थी, तो आपको इसको 3B अप्रैल की 3B में रिवर्स कर देना चाहिए था। अब अगर आपने इसका रिवर्सल उस समय में नहीं किया है तो अल्टीमेटली इसका जब एक्चुअल डिलीवरी हुई आपको उस समय में इसका क्रेडिट मिल जाना चाहिए, आपने दोबारा इसका क्रेडिट लिया नहीं। करेक्ट वे तो ये था एक बार रिवर्सल करते दोबारा इसका क्रेडिट लेते। लेकिन अगर नहीं भी लिया है तो जब डिपार्टमेंट इसको फाइंड आउट करेगा और इसके ऊपर अगर कभी कोई डिमांड निकालेगा तो आप उनको बड़ा क्लियरली और बड़ा सबमिशन कर सकते हैं हम्बली कि देखिए मेरा केवल प्रीपोनमेंट ऑफ क्रेडिट हुआ है, इसके लिए आप जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मुझसे ले लीजिए, और यूजुअली डिपार्टमेंट इसमें एग्री कर जाता है अगर वो इसके ऊपर इंसिस्ट करते हैं तो। इसके अलावा अभी 9 में आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं सर, अगर आप, क्योंकि अब आपके पास अवेल करने के लिए दोबारा चांस नहीं है, उसका पीरियड निकल चुका अवेलमेंट का।
मार्च का इनवॉइस आप अक्टूबर की रिटर्न तक अवेल कर सकते थे, वो अक्टूबर का टाइम भी निकल गया, अक्टूबर की रिटर्न भी चली गई। तो अब आप वेट कीजिए, अगर आपकी कोई, सौरभ जी अगर कोई डिमांड आती है इसमें, तब फिर आप उनको इंटरेस्ट पे करके इसको क्लोज करवाइए मैटर को। कल्पना जी का क्वेश्चन है, इन HSN वाइज समरी देयर इज नो स्पेस फॉर मेंशनिंग सप्लाई टू SCZ। सो इसमें जीरो रेटेड वाले में आपको यहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा देना है। एप्लीकेबल टैक्स रेट मैडम वही होता है, चाहे आप SCZ को करें चाहे आप इसको करें, एक्सपोर्ट करें, टैक्स रेट वही रहता है जो आइटम से रिलेटेड टैक्स रेट है। तो इसलिए टैक्स रेट आपको वही लिखना है। टैक्स उसमें SCZ में विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट क्या था वो एक आपको अलग शो करना है। तो HSN में इसमें आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन है, सर वन इनवॉइस इज मिस्ड इन एनुअल अकाउंट्स, GST टर्नओवर इज करेक्ट, हाउ वी शो इन GSTR 9। GSTR 9 में आपने कहा कि करेक्ट टर्नओवर शो की है, तो एनुअल अकाउंट्स में आपने टर्नओवर कम शो कर दी। इसका मतलब आप जो कहने चाह रही हैं कि वन इनवॉइस इज मिस्ड इन एनुअल अकाउंट्स, तो उस जो इनवॉइस आपने मिस कर दिया एनुअल अकाउंट्स में, वो किस रीजन से मिस किया, तो क्या आप उन एनुअल अकाउंट्स को दोबारा रीड्राफ्ट करना चाहेंगे? मैं ऐसा समझता हूं कि इस वाले इशू को तो अब आप ठंडे बस्ते में डाल दें, जब कभी ऑडिट में या उसमें रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो आपको दोबारा अपने अकाउंट्स रिकास्ट करने पड़ेंगे। इसका एक पर्पस ये भी हो सकता है, आप ध्यान करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस इनवॉइस तो रेज हो गया लेकिन उस इनवॉइस से रिलेटेड सप्लाई नहीं हुई, तो इसलिए उसको रिड्यूस कर दिया गया हो प्री इशूड इनवॉइस करके एनुअल अकाउंट्स में। तो वहां फिर उसकी आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी और सूटेबली उसको आप कर लीजिएगा। अदरवाइज फिर मुझे कॉल कर लीजिए, इसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अमित कसात साहब का इस इन प्रीवियस ईयर FY 2021 आउटवर्ड सप्लाईज इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन करंट ईयर 21-22 and payment also done in current year 21-22 month should we report in GSTR 9 separately? सर वो तो ऑलरेडी आपने जब सब्सिक्वेंट ईयर में किया है तो रिपोर्ट हो गया विद इन द पीरियड, तो उसको टेबल नंबर 10 में आपने शो कर ही दिया है। अगर टेबल नंबर 10 में शो नहीं किया है, उसके बाद जाके किया है, तो भी अब इसके ऊपर आपकी लायबिलिटी केवल इंटरेस्ट पे करने की है, टैक्स आप पे कर चुके हैं अगर आपने सब्सिक्वेंट ईयर में कभी भी इसको शो कर दिया है 3B में या GSTR 1 में। तो आप केवल इसका इंटरेस्ट DRC 03 के थ्रू पे कर दे और अपना कंप्लायंस कर ले, नो अदर लायबिलिटी विल अराइज। We have imported goods in financial year 17-18, invoice date and bill of entry is also 17-18, but in GSTR 2B it has been reflected in 21-22। ऐसा कैसे हुआ सर? इंपोर्ट तो आपको खुद को करना है, 21-22 में 2B में आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, पर आपने तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स उस समय में क्रेडिट ले लिया होगा। कैन वी क्लेम द सेम ITC इन करंट ईयर इफ वी हैव नॉट क्लेम्ड द सेम? सर देखिए, लिटिगेशन का मैटर है, आपको उसी समय में क्लेम करना चाहिए था, सब्सिक्वेंट ईयर भी निकल गया, बट अगर उस समय में केवल इसलिए छूट गया कि एक कॉमन एरर हो गई आपसे भी और आइसगेट पोर्टल से भी, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। और 2B में अब इस समय कैसे रिफ्लेक्ट हो गया इस समय में जाकर के, ये अगेन आपको चेक करने की बात है। नहीं क्लेम हुआ, 3B GSTR 2B में आ रहा है। अब 2B में तो अब इसलिए आ रहा है कि 2B तो पुराने से मैच हो रहा है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं आ रही है सर। उस समय में भी 2A बना होगा या 2B बना होता तो आ जाता, एंट्री तो उसी समय की आ रही है। तो इसलिए 2B का रेफरेंस अपनी क्वेरीज से डिलीट कर दीजिए। बेसिकली वो आपका क्रेडिट था, आपको खुद लेना था, अब आप नहीं ले पाए। अब अगर आप उसके ऊपर अब डिस्प्यूट में अब उसको लीगली ले नहीं सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं है, आप लेना ही चाहते हैं तो 3B के माध्यम से ले लें, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, आपको लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। हो सकता है इन द मीन टाइम जब तक आप लिटिगेशन में जाएं तो सब्सटेंटिव बेनिफिट करके कोई कोर्ट जजमेंट आ जाए कि 5 साल पुराना भी सब्सटेंटिव बेनिफिट एसएससी को मिलना चाहिए, जैसा ट्रांस 1 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन GSTR 2B का जो रेफरेंस दिया, ये तो थोड़ा सा अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि एज इफ न्यू एंट्री आई है। नहीं,
एंट्री आपकी पुरानी है, जीएसटीआर 2 भी क्रिएट होने अभी शुरू है, तो एक मिस हो गया उस समय में। अब क्लाइंट को बोलिए कि इसको देखिए रिस्क ले सकते हैं, अभी अवेल कर ले और अवेल करके इसको रिवर्स कर दें। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई ऑर्डर आता है बाद में उसको रीगेन कर लीजिएगा, या एक रिस्क लेकर के चल लीजिए, ये आपकी कॉल है। अभिषेक अग्रवाल जी की क्वेरी है, Assessee engaged in the business of petrol pump, his turnover exceeding ₹5 crore. In his return, we show lubricants at the rate of 18%, petrol and diesel at non-GST supply. Absolutely. In GSTR1, HSN summary, we mention HSN detail only for lubricant. Kindly guide while GSTR9 whether we have to show. हाँ जी, GSTR9 में complete HSN show कर दीजिए। अगर आपने मंथली रिटर्न में नहीं भी किया है कोई बात नहीं, अब कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, इससे कोई टैक्स डिमांड नहीं निकलेगी। अनिरुद्ध अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, पहले तो धन्यवाद है सर आपका कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा सेशन। क्वेरी है उनकी, सप्लाईज मेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन विच टीडीएस डिडक्टेड बाय देम, हाउएवर रिटर्न नॉट सबमिटेड बाय देम, नो रिफंड रिसीव्ड येट, वेदर टू शो इन जीएसटीआर 9। यस सर, आप तो अपनी सप्लाईज को जीएसटीआर 9 में शो करिए, क्योंकि उन्होंने तो टीडीएस कर दिया, टीडीएस की रिटर्न नहीं सबमिट की है, उनकी तरफ से एक लैप्स है, उनसे उनके साथ में कम्युनिकेट कीजिए, बट यस सप्लाईज को तो शो करना ही करना है आपको। हितेंद्र ठक्कर जी का क्वेश्चन है, इन विच टेबल ऑफ जीएसटीआर 9 टैक्स पेड थ्रू डीआरसी 03 ड्यूरिंग द ईयर नॉट रिक्वायर्ड, कहीं शो करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। राधिका देवी जी का क्वेश्चन है, वन इनवॉइस इज मिस्ड इन एनुअल अकाउंट्स, टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न वाज करेक्ट, इसको भी हम आंसर कर रहे हैं। हाउ कैन वी शो इन जीएसटीआर 9? जीएसटीआर 9 में तो आपको जीएसटी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही शो करना है मैडम, तो इसलिए नीड नॉट टू वरी। और जो इनवॉइस आपका एनुअल अकाउंट्स में रह गया उसको आप डिस्कस कर लें कि उस फाइनेंशियल ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रोप्रिएटली किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। सिमिलर क्वेरी पिछले एक दूसरे मेंबर की भी थी, उनको भी मैंने कहा था अगर आपको इसमें कोई डिटेल डिस्कशन करनी हो तो मुझे आप फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं सेशन के आखिरी में अपना नंबर दे दूंगा आपको। अमित जी के क्वेश्चन हैं, सर वी आर फाइलिंग एचएसएन इन मंथली रिटर्न, ये हो गया सर क्वेश्चन। वाई डिपार्टमेंट आस्क इट अगेन इन जीएसटीआर 9? सर देखिए जीएसटीआर 9 में कंसोलिडेटेड व्यू देते हैं, बहुत से लोग मंथली में नहीं भी देते, तो इसलिए इन टेक्निकलिटीज में हम ना जाएं, इनको हम जितना कंप्लायंस हो सके करते चले जाएं। सलमान वोरा जी का क्वेश्चन है, माय क्लाइंट टर्नओवर इंक्लूड्स बिल्स ऑफ ओशन फ्रेट exempted and other service taxable at the rate of 18%. बिल ऑफ ओशन फ्रेट exempted मतलब आपका सलमान जी, आपका क्लाइंट जो है वो एक शिपिंग लाइन है या आप एक शिपिंग लाइन से इनवर्ड सर्विसेज ले रहे हैं ओशन फ्रेट की, एंड अदर सर्विसेज आर टैक्सेबल 18%। क्वेश्चन इज वेदर आईटीसी टू बी रिवर्स्ड इन दिस केस। आपके क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी नहीं है सर कि आप ओशन फ्रेट कौन से वाले की बात कर रहे हैं, आउटवर्ड इनवर्ड किस तरीके की। तो मनमोहन जी उसमें उन्होंने आगे फर्दर कहा है यस शिपिंग लाइन बिजनेस है ये, नहीं तो शिपिंग लाइन बिजनेस है अगर आप तो ओशन फ्रेट पे अगर आपका एग्जम्प्टेड है और अदर सर्विसेज पे 18% है तो यस आईटीसी आपको रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि आप टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट दोनों सप्लाईज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स रूल 42 एंड 43 दोनों एप्लीकेबल होंगे, उनको देख लीजिए। 42 में इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का रिवर्सल, 43 में कैपिटल गुड्स का रिवर्सल। वाइल फाइलिंग राहुल जी का क्वेश्चन है, वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 9 फॉर 21-22 in table number 12 and 13 figure of 21-22 be included or figure of 2021 to be shown। सर जीएसटीआर 9 जब हम भर रहे हैं 21-22 की, तो 21-22 से रिलेटेड जो फिगर हमने 22-23 में
शो की हैं वो हमें टेबल नंबर 12 और 13 में भरनी है। 20-21 का टेबल नंबर 12 और 13 ऑफ जीएसटीआर 9 से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, क्लियर? अमित जी का धन्यवाद है, थैंक यू अमित जी। सलमान जी का, यस शिपिंग लाइन बिजनेस हो गया सलमान जी आपका क्वेश्चन? हाँ आउटवर्ड है, हो गया सर, डिस्कस कर लिया हमने। तेजेंद्र खन्ना जी का है, माय क्लाइंट टर्नओवर इज 14554960, नीड टू फाइल जीएसटीआर। एक नहीं, जीएसटीआर 9 आपको एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी 1,45,00,000 रुपए है, आपको जीएसटीआर 9 ऑप्शनल है, आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर सारे जीएसटीएन ऑफ ए क्लाइंट टुगेदर अगर सबका मिला के 2 करोड़ से ऊपर जाएगी तब आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी है। धन्यवाद सलमान जी। तेजेंद्र जी का, देयर इज ए मिसमैच इन R1 एंड 3B, व्हाट नीड टू बी डन? सर मिसमैच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 9 भरते वक्त अगर आउटवर्ड सप्लाईज में आपकी इंक्रीज है तो आप इंक्रीज या जो एक्चुअल आपकी है वो फाइल कीजिए, जो एक्चुअल आउटवर्ड है, और फिर उसका DRC 03 के थ्रू टैक्स पे कीजिए। अगर 3B और R1 में किसी भी तरीके का मिसमैच है और उससे एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ती है तो वो हमें DRC 03 के थ्रू पे कर देनी चाहिए। और अगर आपका कोई जब GSTR 1 की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम आउटवर्ड सप्लाईज की बात कर रहे हैं, इनवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। दर्शन डेडिया जी का क्वेश्चन है, इन कंस्ट्रक्शन सर्विस देयर वेयर टू शो 1/3 वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर रिटर्न व्हिच इज अलाउड एज लैंड डिडक्शन। सर वो आपको एग्जम्प्टेड सप्लाई में शो करने की जरूरत है। जितनी भी एग्जम्प्टेड वैल्यूएशंस हैं, लैंड सप्लाई की वैल्यूएशन इज ए बेसिकली नो सप्लाई, तो अगर आप उसको नो सप्लाई में शो कर दें या एग्जम्प्टेड वैल्यू में शो करना चाहे वहां कर दें। नो सप्लाई लैंड की ट्रांजेक्शन इज ए नो सप्लाई। For eye hospital, is there any necessity to split ITC for exemption service and taxable service? Yes, ma'am. For everyone, it is necessary. तेजेंद्र जी का हो गया सर। उमेश जी का क्वेश्चन है, GSTR to be reflected ITC in June 22 for 2021. ओके 2021 का ITC जून, अच्छा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो वी क्लेम्ड इन अक्टूबर 3B। इसका मतलब आप पुराने में लेना भूल गए थे, अपने रिकॉर्ड्स में आपके क्लियर नहीं है और अब आपने ले लिया। सर एक मिस्टेक है, सब्सटेंटिव अगर आपका टैक्स है तब तो आप इसको सस्टेन कीजिए, नहीं तो इसको रिवर्स कर दीजिए। छोटे से मैटर के लिए लीगल डिस्प्यूट क्रिएट करना ठीक नहीं है। जून 2021 का आईटीसी आप सितंबर 2021 की रिटर्न जो कि 20 अक्टूबर तक फाइल हो जानी चाहिए थी, केवल उसमें ले सकते थे। अगर आपने उसको जाके अक्टूबर 22 में लिया है तो मनमोहन जी इन्होंने बाद में लिखा, सॉरी इट इज नॉट 2021, इज 21-22। तो अक्टूबर की रिटर्न में 21-22 में लिया है तो भी ये टाइम बार हो गया सर। मैंने आपको बताया कि 21 की सितंबर मंथ की रिटर्न जो 20 अक्टूबर तक फाइल हो जानी चाहिए थी उसमें लेना था आपको उमेश जी, क्योंकि आपने उसमें नहीं लिया। अगर सब्सटेंटिव अमाउंट है आपके पास चांस रहेगा लीगल कहीं ना कहीं कोई आपके फेवर में डिसीजन आने का, आप इसको कंटेस्ट जरूर करें। लेकिन अगर छोटा सा मैटर है तो इसको रिवर्स करके इसका DRC 03 भर के खत्म करिए इसको। अमितेश रवि, for 21-22 ITC updated by vendor but not updated in 2B. Since the same is filed after due date in October 22 month, client claimed the same in October 22 return due to deadline of 30th November. Absolutely, whether same is correct, absolutely correct है अमितेश जी, कोई इशू नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखें। कोठारी साहब का हो गया है क्वेश्चन। I think we should take the last question now. अगर हाँ, उमेश जी ने थोड़ा सा स्टैंस फिर चेंज किया है,
क्वेरी इज नॉट फॉर 2021 फॉर 21-22। अगर आपका 21-22 से रिलेटेड उमेश जी आईटीसी था जो आपने अक्टूबर 22 की रिटर्न में अगर ले लिया, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अक्टूबर 22 की रिटर्न जो 30 नवंबर से पहले फाइल हो जानी चाहिए थी, उसमें आपको ये आईटीसी सब्सिक्वेंट पीरियड की टाइमलाइन थी, इसमें आपने ले लिया, आपको प्रॉपरली अलाउ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। दर्शन जी का, द डिपार्टमेंट इज क्लेमिंग प्रोपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ 1/3 वैल्यू शोन इज एग्जम्प्ट। डेफिनेटली सर, नो सप्लाई भी प्रोपोर्शनेट रिवर्सल के लिए काउंट होती है, बिकॉज प्रोपोर्शनेट रिवर्सल के लिए नो सप्लाई शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज एग्जम्प्ट सप्लाई। तो वो डिपार्टमेंट की कंटेंशन सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। उमेश जी ने कहा है कि इन विच टेबल, सर टेबल नंबर 13 में आपको ये शो करना है, टैक्स ऑफ द करंट ईयर, आईटीसी ऑफ द करंट ईयर अवेल्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 13 में आपको ये शो करना है अमाउंट। ठीक है सर, आई थिंक ऑल द क्वेरीज हैज बीन आंसर्ड। yes, अगर कोई चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हों तो हम देख सकते हैं। 1 मिनट में स्टॉप शेयर कर दूं पहले से। अगर कोई चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं तो देख लें, वैसे होना नहीं चाहिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नजर नहीं आ रही सर क्वेरी एक, नहीं सर चैट बॉक्स में कोई क्वेरी नहीं है। तो चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में कोई क्वेरी नजर नहीं आ रही मुझे। चैट बॉक्स में कोई क्वेरीज मुझे नजर नहीं आ रही हैं सर। yes, तो थैंक यू वेरी मच। ये स्क्रीन शेयर कैसे स्टॉप होएगा? हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर वेरी काइंड hearing and very patient hearing and being interactive by way of queries. So thanks very much to Pusa Road Study Circle, Rajesh ji, Rajesh Jain ji, and all other Dua Saab and all other participants. Thank you very much, sir. We shall be thankful to Manmohan Khemka ji. He has very exhaustively explained the table wise and the clause wise details description of the things like cross transactions, like the income distribution and other things, input distribution, other things, and clear the various concepts in between. I think the participants, all the participants are benefited by it. He has connected GSTR 9 with 9C and the explanation and the reconciliation which is to be mentioned there. As well as he has also explained that we had to pay the we should pay the tax by way of DRC 9 voluntarily along with the interest whatever is due, which is very important, because voluntary payment before the department take the action and ask for the demand, if we pay by virtue of our own violation, that is a good move by the SSC, as well as the department can take a lenient view in such cases. So thank you very much, Manmohan Khemka ji, on behalf of the Pusa Road Study Circle, on my behalf, and on behalf of all the participants. We are so grateful to you. Thank you very much. Thank you very much, sir. और एक मेंबर की रिक्वेस्ट आई है कि ये 9 और 9C विद इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्म में आपको शेयर कर दूं, तो मैं राजेश जी की मेल आईडी पे इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेंबर्स कैन टेक द बेनिफिट सर। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई भी मेंबर्स की कोई भी और क्वेरीज हैं अगर, तो मैं अपना नंबर मेल चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ 9810064427, और मेरा मेल आईडी भी लिख रहा हूँ manmohankhemka@gmail.com। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों पे, तो एज पर योर कन्वीनियंस, क्योंकि ये मेंबर्स के लिए बड़ा टाइम बाउंड प्रोग्राम है GSTR 9 का। Yes, yes. I shall make myself available for your service, sir, all the time। मैं थोड़ा, हाँ जी,